इधर से नहीं आएगी। इधर से नहीं, इधर से नहीं। अब समझ भैया सामने
आपके के पास बैठता हूँ क्या समझती है बैठ सकता हूँ Very good morning to all of you. So our delegates are arrived here. So we will start now. Today, Department of Chemistry is hosting first distinguished lecture series, which is organized by the Inter Quality Assurance Cell IQAC of the Lalit Narayan Mithila University. So I welcome my Honorable Pro Vice Chancellor Ma'am, Professor Dolly Sinha Ma'am, our respected guest, Dr. R.J. Chaudhary Sir, which is Scientist D in UGC DAE Indore, Professor B.S. Jha Sir, Dean Faculty of Science, Professor Mustaq Ahmad Sir, Registrar of this University, Head Professor K.K. Jha Sir, Head of this department, Professor M.K. Agrawal Sir, Director IQAC of Lalit Narayan Mithila University. These distinguished lectures are aimed at inviting brilliant and renowned speakers for delivering stimulating lectures on intriguing topics that are of interest of young researchers and master's students of this university and of the university. This will give an excellent opportunity for our faculties, research scholars and students to exchange the idea with the learned speakers. As a researcher, I can feel and understand the intensity and importance of this distinguished lecture. Dr. Ram Jane Chaudhary Sir is a Scientist G in UGC DAE Consortium for Scientific Research, Indore. He received his Masters in Physics from Allahabad University, qualified CSIR NET in the Physics stream in 1999. He did his PhD from University of Pune in March 2005 in joint collaboration with University of Maryland, College Park, USA and Inter-University Accelerator Center, New Delhi, India on the topic growth and property of functional magnetic oxide and their irradiation studies. He was a faculty research assistant at Center for Superconductivity Research, University of Maryland, College Park, USA, and then embarked fellow physics department, Trinity College, Dublin, Ireland from 2005 to January 2006. Prior to starting his independent career as a scientist at UGC DAE Consortium for Scientific Research, Indore. He has been awarded DAE Young Scientist Award in 2013, DAE Group Achievement Award in 2017. He has more than 300 publications and his citation is more than, I think, more than 5,000 citations, his publications. So you can understand a scientist, recognition of scientist is by citation. Who is reading his paper, citing his publications in their citation and research. And he has, and you can understand the quality, well renowned, known journal of scientific nano letters, Physics Review B, Nanotechnology, ACS Applied Nanomaterials, Journal of Physics Condensed Matter, Applied Physics Letter and many more. He has been supervised more than 15 research scholars. His area of interest is proving electronic correlation effect on electrical, magnetic and magnetotransport property for transition metal oxide, thin film and heterostructure using a combined study and resonant photoemission spectroscopy. So first
we would like to welcome our guest. So I will request my Pro Vice Chancellor, ma'am, to facilitate our guest, Dr. Ram Jane Chaudhary sir, by Mithila tradition, by shawl and part. I'm really ready for this interview. अब मैं अपने अध्यक्ष महोदय रिस्पेक्टेड प्रोफेसर के झा सर से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रो वाइस चांसलर मैम को सम्मानित करें। 2 मिनट मेरे पास। अंसारी सर से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे डीन साइंस प्रोफेसर बीएस झा सर को वो पुष्प देकर सम्मानित करें। मैं आग्रह करूंगा डायरेक्टर आईक्यूएसी प्रोफेसर एनके अग्रवाल सर को कि वो रजिस्ट्रार सर का अभिनंदन करें। डॉक्टर अभिषेक राय से आग्रह करूंगा कि हमारे आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर एनके अग्रवाल सर का वो अभिनंदन करें। Now I would like to invite my respected head of the department, Professor K.K. Jha sir, to say something about this lecture series. हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। ऑनरेबल प्रो वाइस चांसलर मैम प्रोफेसर डॉली सिन्हा, ऑनरेबल स्पीकर डॉक्टर राम जने चौधरी जी, रेस्पेक्टेड डीन साइंस सर मिथिला यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार सर डॉक्टर मुश्ताक अहमद, आईक्यूएसी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एनके अग्रवाल, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा जी, हेड बॉटनी डिपार्टमेंट और विभिन्न विभागों से आए हुए सभी शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं, आप सबों को मेरी ओर से इस विभाग में पधारने के लिए आपका विभाग और मैं अपनी ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। बड़े हर्ष की बात है कि आज ये कार्यक्रम लेक्चर सीरीज केमिस्ट्री में आईक्यूएसी के सहयोग से शुरू हो रहा है, जिसपे हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर राम जने चौधरी जी आए हुए हैं। ये बड़ी हर्ष की बात है कि जो ये इसी क्षेत्र से हैं और मिथिला पुत्र हैं। इनकी ड्रेस भी आज बता रही है जो ये मिथिला क्षेत्र के हैं। और जब इनको पाक से सम्मानित किया गया तो हम लोग अपने को बहुत गौरवान्वित फील किए। ये सभी में मिथिला क्षेत्र से हैं। इनका ग्राम चौटा हुआ जो कि कमतौल के पास है, और कमतौल इसलिए प्रसिद्ध है वहाँ अहिल्या स्थान है। तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, और इन्होंने जो अपना समय दिया है इस विभाग को आने के लिए मैं उनका पुनः एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ श्री प्रोवीसी मैम को, जो आईक्यूएसी के सीरीज का जो स्टार्ट हुआ है वो केमिस्ट्री को इन्होंने पहला अवसर दिया। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रजिस्ट्रार का अभिनंदन करता हूँ विभाग की ओर से, जो इन्होंने बहुत सारा काम होने के बावजूद इस विभाग में 5 मिनट के लिए बोले थे और आए। मैं डीन साहब मेरे अग्रज हैं,
उनको हम बधाई क्या दूंगा, मैं तो उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब सारा काम कर रहा हूँ। आप सबको अंत में पुनः एक बार धन्यवाद विभाग की ओर से और मेरी ओर से। Now I'd like to our dynamic registrar, Professor Mustaq Ahmad sir. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की सम्मानित प्रतिकुलपति प्रोफेसर गौरी सिन्हा साहिबा, आज के विशेष व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता प्रोफेसर चौधरी साहब, हमारे विश्वविद्यालय के विज्ञान संख्या अध्यक्ष बड़े भाई प्रोफेसर अभिनंदन शेखर झा साहब, IQAC के डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल साहब, इस विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर KK झा साहब, सभागार में उपस्थित ललित नारायण विश्वविद्यालय के स्थापित वैज्ञानिक के रूप में केमिस्ट्री के शिक्षक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा जी, बॉटनी के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर शहनाज जमील, हमारे DO साहब, अंसारी साहब एवं अन्य शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, सबसे पहले तो मैं अपनी प्रतिकुलपति महोदया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, मिथिला की तरफ से, मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि आपने विश्वविद्यालय में केवल एक पद को सुशोभित नहीं किया है, बल्कि एकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ मिथिला विश्वविद्यालय को ले जाने की कोशिश की है। और आपका प्रयास रहा कि कोविड के बाद विभिन्न विभागों में शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ हुई, नेशनल इंटरनेशनल वेबिनार सेमिनार सीरीज शुरू हुआ, और आज भी आपकी देन है कि आपने IQAC के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यानमाला की शुरुआत की है, और जिसका प्रारंभ राष्ट्र के ख्याति प्राप्त साइंटिस्ट वैज्ञानिक डॉक्टर चौधरी को रसायन शास्त्र विभाग ने आमंत्रित किया है और वो आए हैं। तो इसके लिए विभाग के विभाग अध्यक्ष, सभी शिक्षक कर्मियों को भी बधाई देता हूं कि मिथिला विश्वविद्यालय में इस प्रकार का एकेडमिक कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिससे हमारे छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगी, शिक्षक भी उनके ज्ञान को शेयर करेंगे, क्योंकि जो शिक्षक हैं उन्हें जिंदगी भर पढ़ना है। खास करके शोध के क्षेत्र में जो इस देश को चैलेंजेस हैं, उससे हम सब भली भांति अवगत हैं कि पूरी दुनिया में आज किस तरह का वातावरण हो रहा है। अभी मैं विज्ञान का छात्र नहीं रहा, शुरू से हमारी रुचि साहित्य में रही, लेकिन बच्चे हमारे विज्ञान, तीनों बच्चों ने विज्ञान पढ़ा, तो बेटे बेटियों को देख करके हमारी भी रुचि विज्ञान में बढ़ने लगी। मेरी बेटी बायोटेक्नोलॉजी में PhD कर रही है, GRF ICS आ रही है, वो कुछ कुछ भेजती रहती है कभी कभी। अभी एक लेख उसने भेजा जिसमें था कि समंदर की जो मून मछलियां हैं वो मर रही हैं। मैंने पूरा लेख पढ़ा, अंत में ये था कि देश की, पूरी दुनिया की जो दुर्लभ मछली है वो मून मछली, वो सिर्फ इसलिए मर रही हैं कि ये जो वातावरण वार्मिंग हुआ है, वो समुद्र का पानी मून मछली के लिए जो चाहिए उससे ज्यादा गर्म हो गया है, इसलिए वो मर रही है और वो विलुप्त प्रजाति है। आज दुनिया उस पर चिंतित हो चुकी है। 15-16 मछली की चित्र भी बेटी ने भेजा,
तो मैंने कहा कि काश जीवन में मैं इसे जिंदा देख सकूं, उस मछली को, कहीं जाऊं तो बेटी ने उसकी 2-3 और तस्वीरें भेजी पानी में चलते हुए। तो मुझे हुआ कि ये खोज अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने किया है। वो छात्र पीएचडी नहीं कर रहा है, वो लेख नेचर को भेजा है उसने, जो आपकी मैगजीन है कोई सबसे बेस्ट है। और उसने उस मछलियों को मरती हुई तस्वीरों को और इसको देखा है, और उसने ये साबित किया है कि चूंकि वो मछली, चूंकि हमारे साइंस के डीन जूलॉजी के हैं, और भैया के नेतृत्व में बहुत पहले भी मछली पर एक बड़ा सेमिनार फिश पे हुआ था 15-20 साल पहले, यहाँ मुझे याद आ रहा है। तो मुझे लगा कि देखिए दुनिया कहाँ जा रही है। आज आप सब भाग्यशाली हैं कि रिसर्च पे जो नए हमारे जो शिक्षक आए हैं साइंस के, उनके लिए एक ऐसे वक्ता आए हैं जो आज इसका क्या इस लेक्चर की अहमियत है वो आप समझेंगे जब उनका लेक्चर सुनेंगे। मैं जवाब प्रार्थी हूँ मैडम से और लोगों से कि कार्यालय व्यवस्था और व्यस्तता के कारण मैं पूरा लेक्चर नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन आप, मुझे उम्मीद है कि आप उनके लेक्चर से लाभान्वित होंगे, इसलिए कि हर व्यक्ति किसी भी चीज को अपने तौर पे समझता है, कहता है। आप कुछ ना कुछ सीखें। हमारे एक शिक्षक थे जब मैं पीजी में पढ़ता था, तो वो कहते थे कि लोगों का लेक्चर सिर्फ इसलिए सुनिए कि स्टाइल इज द मैन इटसेल्फ, यानी कि आदमी के बोलना जो है वही उसकी इंफरादियत है, उसे अलग करती है। तो आप हर लेक्चर हर आदमी को सुनिए कि वो बोलता कैसे है। तो मुझे तो सुनने में बहुत लाभ मिला, शायद मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अपने पर साबित नहीं कर सका, लेकिन आप जरूर लाभान्वित होंगे। मैं पुनः विश्वविद्यालय की ओर से विभाग को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और जो आज मुख्य अतिथि के तौर पे प्रोफेसर चौधरी साइंटिस्ट आए हैं, अभी आपने सुना उनका बायोडाटा, उसके बारे में जो बताया गया कि कितना उन्होंने काम किया है। 10 वर्षों में देख रहा था कब से उन्होंने शुरुआत किया, तब से 10 वर्षों में उसने कितना काम किया है, कितने रिसर्च पेपर लेके, साइटेशन लेके, बुक आई, कहाँ से खुद को जोड़ा है। ये हमको और आपको सोचने का है कि हमने 10 सालों में क्या किया, हमारे शिक्षकों ने क्या किया है। इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से भी प्रोफेसर चौधरी का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपने अपने व्यस्त समय में विभाग को टाइम दिया। अब मैं इस साइंस फैकल्टी के डीन रिस्पेक्टेड प्रोफेसर BS झा सर को आमंत्रित करना चाहूँ, वो दो शब्द कहें। Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Dolly Sinha, Registrar of the University, Professor Mustaq Ahmed, Head of the Department of Chemistry, Professor K.K. Jha, Head of the Department of Botany, Professor Shahnaz Jamil, my younger brother who used to be my roommate or neighboring roommate during student days, Professor Vidyanath Jha, Development Officer and Faculty Member of Department of Botany, LNMU, Dr. K.K. Shahu, Professor Prem Mohan Misra, well-known person from chemistry, other colleagues of the department and other departments, dear students,
it is a matter of great pleasure that under the aegis of IQAC, this lecture series has been arranged. Only yesterday in the evening, I could get a message from Shriman Srivastava, the young energetic teacher of this department, about this lecture. At that time, I was performing some of the duties of the university at a long distance in Samastipur district. So once I returned, only thereafter I could see the topic, which is quite relevant. I give the credit of organizing this lecture series to our learned Pro Vice Chancellor, Professor Dolly Shenha, and the dynamic vision of our Vice Chancellor and Registrar, so that our students and faculties could be benefited and the university may have some benefit in NAAC accreditation also. I have some reservations about the IQAC that I have hinted to the Honorable Pro Vice Chancellor, but under her dynamic leadership and the strains, the labor that she puts in convincing us about the necessity of organizing these such types of lectures, seminars, and making the academic activities and the campus vibrant. So it is she who always keeps using very respectful words to our teachers to go for good quality, high quality research work. So for this we are obliged to you, madam, and hope, being the son of this wife, daughter of this wife, I treat you as Mithilani. So it's our fortune that the chief speaker, keynote addressee today, Professor Ramjane Chaudhary ji, and our Pro Vice Chancellor, both are from this soil. So that way we feel elevated and proud. So once again, before I speak something, I would like to welcome the chief speaker of the day, Professor R.A. Chaudhary, for sparing some of the times for this valuable lecture. So I welcome you on behalf of the Faculty of Science of this university and on my own behalf. I don't know much about, I always keep on saying that I belong to life science. My branch is zoology, which is supposed to be the arts of science. So I don't know much about these topics. But advanced materials, it has immense application. We can't think of the present era without advanced materials. Advanced materials are having engineered properties created through the development of specialized processing and synthesis technology that includes ceramics, high value added metals, electronic materials, composites, polymers, and biomaterials. Flexible batteries, the graphene, silicon carbide, carbon nanotubes, smart glass, biochips are some of the top advanced materials in the electronic industry. So basically metals, plastics, wood, glass, ceramics, synthetic fibers and composites that are made from two or more materials having different physical and chemical properties. And similarly, again, this LCD, the liquid crystal displays, fiber optics, these are also some of the examples that we can cite about advanced materials. So chemistry has to play a key role in the development or processing of the materials,
new materials that can meet the changing needs of today's technology. And this topic of the lecture probably is this characterization of advanced materials. So these characterization techniques, they are important and they are used to identify materials, and some of the techniques are same: scanning electron microscopy, TEM, transmission electron microscopy, X-ray diffraction, X-ray fluorescence, nuclear magnetic resonance, and synchrotron techniques, for which the chief speaker will be speaking. Synchronous techniques, as I understand, probably employ protein crystallography, X-ray diffraction, X-ray scattering, X-ray absorption spectroscopy, photoelectron spectroscopy, infrared spectroscopy, circular dichroism, and X-ray microprobe. In the synchrotron, what happens is the fundamentals that I know, a storage ring is a special type of synchrotron in which the kinetic energy of the particles is kept constant. Probably this is the basis of its technology. So this is very relevant. It has immense applications in all the fields, and particularly in life science, drug discovery, drug designing, in these areas. So I again thank Honorable Pro Vice Chancellor for emphasizing, for motivating the faculties, the teachers, the students, and all of us, the research scholars, the postgraduate students, faculty members, will be benefited with this kind of lecture, and I am sure the series of such lectures will be organized by different faculties under the dynamic leadership of the present university administration. And I thank the head of the department of chemistry, other teachers of chemistry department, for giving me an opportunity to be amongst you and to share this platform with you. Thank you all. Thank you. Thank you, sir. You are very true that present leadership is really encouraging research in different departments by different activities. Now I would like to invite our Pro Vice Chancellor, which is Sutradhar for this distinguished lecture series, for say something with some words about this. Namaskar and very good morning to all. We have today with us a distinguished scientist in the field of material science, Professor Ram Yanay Chaudhary, the dynamic registrar of the university, Professor Mustaq Ahmad, Dean Faculty of Sciences, Professor B.S. Jha sir, the head of the Department of Chemistry, Professor K.K. Jha, Director of IQAC and Professor of Mathematics, Professor M.K. Agrawal. And also in the audience we have distinguished personalities and academicians, head of the Department of Botany, Dr. Jamil, Dr. K.K. Sahu sir, Dr. Prem Mohan Mishra sir, and other faculty members and coordinator of this program, Dr. Simant Srivastav, and my dear students. आज का दिन विशेष है क्योंकि हम लोग जब से यहाँ आए हैं कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक रिसर्च वातावरण जो है, जिसको बोलते हैं रिसर्च कल्चर, यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू किया जा सके। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान का या किसी भी विषय पर, चाहे वो विज्ञान हो या समाज विज्ञान हो या साहित्य हो, उसमें नए काम की कितनी आवश्यकता है,
और खासकर विज्ञान में। और विज्ञान में जो अच्छा काम होता है, अगर आप रिकॉर्ड देखें तो आप पाएंगे कि जितने हमारे IITs वगैरह है, उसने विज्ञान के क्षेत्र को जितना आगे बढ़ाया, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है विश्वविद्यालय के रिसर्च लैबों में। अगर पुराने थोड़ा सा पीछे हट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में जो भी बड़े काम हुआ वो विश्वविद्यालय के प्रयोगशालाओं में ही हुआ। अगर हम जैसी बोस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, जो बिना मीडियम के आगे जा सकता है, जिसका फलस्वरूप आज हम लोगों के सबके पॉकेट में, हाथ में मोबाइल घूम रहे हैं, या हम SN बोस की बात करें, जो दुनिया के आधे जो कण है वो उनका स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, या हम CV रमन सर की बात करें, जिनका कार्य के कारण उनको नोबेल प्राइज मिला, रमन इफेक्ट आप सभी जानते हो। तो ये सारे काम जो है विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में हुआ, क्योंकि IITs या अन्य इंस्टीट्यूशंस जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनका छात्र संख्या बहुत सीमित है। और हमारे ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं, खासकर जो दूर दराज के क्षेत्र से आते हैं, गांव से आते हैं या सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो विश्वविद्यालय में ही अब दाखिला लेते हैं और वहीं उनका भविष्य बनता है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के प्रयोगशालाओं को हम स्ट्रेंथन करें, उसमें अच्छा काम हो और हमारे विद्यार्थियों का जो है रिसर्च के प्रति प्रेम जागृत हो और वो अच्छा काम करें। तो इसी के तहत हम लोगों ने सोचा कि एक हम लोग विशेष लेक्चर सीरीज या डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर सीरीज का आयोजन करेंगे, जिससे हमारे बीच जो है अच्छे वक्ता आएंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना जो एक्सपीरियंस है आपको बताएंगे, शेयर करेंगे और विश्वविद्यालय में हम लोग अच्छा काम का एक माहौल तैयार कर सके। मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर रामजन चौधरी सर का कि उन्होंने इस सीरीज का पहला टॉक देने के लिए स्वीकृति प्रदान की और आज वो हमारे बीच में है। आप पहले भी सुने हैं, वो मिथिलांचल से जुड़े हैं, ये भी हमारा विशेष सौभाग्य है। मैं आपको बताना चाहूंगी वो जिस विषय पे बोलेंगे, अभी आप सुनेंगे, हम आपका ज़्यादा समय उनके और आपके बीच में मैं खड़ा होना नहीं चाहती हूँ। मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ कि कब वो बोलेंगे और मेरी भी ज्ञान में थोड़ी वृद्धि होगी, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना बेसिक्स को क्लियर करते हुए बोलते हैं कि उनको सुनने में बहुत ही आनंद आता है। तो वो जो आप सुने हैं अभी तक, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, आपको धारणा होगी उनके टॉक से भी कि मटेरियल्स का कैरेक्टराइजेशन पे वो फोकस करेंगे और मटेरियल जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम जानते हैं। पूरा काल से ही जो पत्थर, जो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या आयरन एज की हम बात करें तो धीरे धीरे कैसे कैसे मटेरियल डेवलप्ड हुआ और कैसे कैसे इंडस्ट्रियल क्रांति आई, स्टेनलेस स्टील बना और एडवांस मटेरियल प्रतिदिन आविष्कृत हो रहे हैं और उससे हम नए नए डिवाइस बना रहे हैं। तो मटेरियल का बहुत महत्व है। हम नया मटेरियल बनाना चाहते हैं और जब नया मटेरियल बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर जानने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूल जो है वो एक्सरेज होता है। और एक्सरे डिफ्रैक्शन आप लोग सभी पढ़े हैं, आजकल +2 के बच्चे भी पढ़ते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में। आपने ब्रैग महाशय का नाम सुना है, वॉन लुई महाशय का नाम सुना है कि उन लोगों ने ये कार्य 1912 में शुरू किया था। वॉन लुई का काम था, फिर ब्रैग का काम जो हुआ, सबसे पहला जो मटेरियल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया उन्होंने, वो बहुत सिंपल मटेरियल था, वो हमारा कॉमन सॉल्ट या NaCl था और उसमें मात्र 2 एटम थे और उसका कैरेक्टराइजेशन एक्सरे टेक्निक से हुआ। और इसके पहले हम इसके लिए श्रेय देते हैं रॉन्जन साहब को भी, जिन्होंने एक्सरे आविष्कार किया था 1895 में और जिसके लिए उनको फिजिक्स का
जो पहला नोबेल प्राइज जो है 1901 में वो रॉन्जन साहब को मिला था एक्सरे के आविष्कार के कारण। तो एक्सरेज जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है मटेरियल का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए। और अब आप देख रहे हैं कि 1912 में जो काम शुरू हुआ था अब उसके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। वो साधारण एक्सरे से अब हमें बहुत इंटेंस और बहुत लो वेवलेंथ का एक्सरे, जिसको हम लोग हार्ड एक्सरेज बोलते हैं, उसकी आवश्यकता है कि हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का जो है स्ट्रक्चर निर्धारित कर सके। क्योंकि आप अगर पढ़े होंगे तो रामकृष्ण वेंकटरमन को जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल रिबोसोम के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला, उनके साथ अन्य 2 वैज्ञानिक भी थे, तो उसमें कई हजार मॉलिक्यूल्स एटम्स थे और उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का और उसको हम जैसे चाहे उसका पोलराइजेशन एडजस्ट कर सके, ट्यून कर सके हमारी आवश्यकता अनुसार, इस तरह के एक्सरेज की आवश्यकता पड़ती है। बहुत दुख की बात है कि हमारे लैब में एक साधारण एक्सरे डिफ्रैक्टरोमीटर भी नहीं है। एक्सरे कैसे पैदा होता है आप सभी बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं कि हम हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को जब टारगेट पे थ्रो करते हैं तो उससे एक्सरे पैदा होता है। लेकिन जो साधारण एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर होता है उसमें मात्र 2 से 3% एनर्जी जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट होता है, बाकी हीट में वेस्ट हो जाता है। तो अच्छे काम के लिए आज जहाँ विज्ञान पहुँच चुका है वहाँ पे जो हम मटेरियल बना रहे हैं उसके स्ट्रक्चर जानने के लिए हमें और जो है सेंसिटिव और जो है मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट की आवश्यकता है। तो सिंक्रोट्रॉन एक ऐसा ही यंत्र है जिसमें एक्सरे का प्रोडक्शन किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड और लो फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। और इसके बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर रामजनय सर से, उसके लिए हम भी उत्साहित हैं और हम आपसे आग्रह करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थीगण कि आप बहुत ध्यान से सुने और आप मोटिवेटेड हो, वो बहुत कुछ आपको बताएंगे और आपको वो आगे भी काम का मौका भी देना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज का दिन हम समझते हैं कि हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। धन्यवाद, नमस्कार। आपने मैम बिल्कुल सही कहा और इस सेंटर की कीमत एक रिसर्च स्कॉलर ही जानता है, क्योंकि उस सेंटर में इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि कई लोगों की उस सेंटर ने पीएचडी करा दी। तो इसलिए हमारे एमएससी और रिसर्च इस स्कॉलर दोनों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर यहाँ आए हैं, इनकी बात सुने और उसके बाद कोशिश करें कि हम उस सेंटर को विजिट करें, क्योंकि स्टूडेंट के रहने खाने मतलब एक अच्छे होस्ट की तरह सारी व्यवस्था फ्री होती है। सर आगे सो नेक्स्ट सेशन इनॉग्रल सेशन के बाद हम टेक्निकल सेशन की तरफ बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर रामजनय चौधरी सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आदरणीय प्रो वीसी मैम, प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी, डायरेक्टर IQAC प्रोफेसर अंकित अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर के झा, डीन ऑफ साइंस प्रोफेसर BS झा, distinguished seniors, our colleagues, Dr. Rai and Dr. श्रीमांत जी, और मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैम कि मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप सभी लोगों से कनेक्ट हो सकूं और एक संवाद स्थापित कर सकूं, कुछ अपने मन की सुनाऊं, कुछ आपके मन की सुनूं
शुरुआत में कहा गया कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होगा। कहने का मतलब हुआ कि ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, इट हैज टू बी बोथ द वे। थोड़ा सा मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, थोड़ा सा आप बोलेंगे और मैं सुनूंगा। सो इट हैज टू बी बोथ द वे, सो दैट मैं भी कुछ सीखूं। अभी डॉली मैम को जब सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैं बस बैठा रहूं और आपको सुनता रहूं। अमेजिंग टीचर यू आर, आई मस्ट से I think the first talk should have been by Dolly ma'am itself, because the way she is holding command over the topic and understanding and the evolution of the science, ये जो इवोल्यूशन है, ये जो हिस्टोरिकल परसेप्शन है, एक अंडरस्टैंडिंग है, जब आप उस चीज को सुनते हैं, अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं कि कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ और उस डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग से आज की दुनिया कैसे स्थापित हुई है, और फिर उससे ये भी स्थापित हो जाएगा कि क्या क्या कसर रह गई है और उन कसर को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो मैम, I must say that I really like the way you introduced the whole topic of X-ray and the X-ray diffraction and material synthesis process and the role of synthesization and the role of characterization. That is really very very crucial. आज कोई भी आप डिवाइस देख लो, वो डिवाइस आज इस तारीख में उस गुण पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप में वो क्षमता थी कि उसके जो मटेरियल्स हैं, उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को आप कैरेक्टराइज कर पाए। अगर आप कैरेक्टराइज कर ही नहीं पाते तो आपको पता कैसे चलता कि ये जो कॉपर है वो मेटेलिक है, या ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो इंसुलेटर है, ये आयरन जो है वो मैग्नेटिक है, एल्युमिनियम नॉन मैग्नेटिक है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? किसी चीज के गुण धर्म को समझना। सबसे साधारण चीज जो बच्चे भी कैरेक्टराइजेशन समझते हैं, कोई गरम कुकर के पास बच्चा चला जाए और छू दे, वो कैरेक्टराइज कर लेता है कि हाँ ये गरम है। भले ही फिजिक्स नहीं समझता है, बट ही अंडरस्टैंड्स द कैरेक्टर कि हाँ ये कुकर है, ये गरम होगा, बिकॉज ऑफ हिज ओन अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, और उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी में कुकर ने हमारे ऊपर कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा झटका लगा, आगे से वो नहीं जाता। ये उसका एक कैरेक्टराइजेशन टेक्निक है। हम लोग तो थोड़े से बड़े हो गए, तो कभी कभार तो हम लोग देख के ही समझ जाते हैं, अच्छा वो फलाना जो है ऐसा, चेहरे से ही एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, वो एक विजुअल कैरेक्टराइजेशन। लेकिन जो अननोन मटेरियल्स हैं, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में आप परिचित नहीं हैं, उसको आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे? तो उसके लिए आपके अपने कुछ टेस्ट रूल्स हैं कि आप उसको ये सिचुएशन दोगे तो उस सिचुएशन में वो बंदा कैसे रिस्पॉन्ड करता है। एंड डिपेंडिंग ऑन हिज रिस्पॉन्स एंड योर ओन चॉइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, you make an understanding or you make a perception about the person who is being examined in that particular situation, right? Similarly, for the materials which are unknown to us, which are not very much known, उसको प्रोब करने के लिए we need to have a proper characterization tools, जिसको कि हम सिर्फ टच करके या देख करके या तौल करके आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी। हमारा चश्मा ग्लास का है, ग्लास का इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक है, अगर उसका कर्वेचर अगर चेंज किया जाए तो उसकी फोकसिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एंड देन वी क्रिएटेड ए लेंस। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट था कि वो एक ट्रांसपेरेंट है। तो हमारे पास एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इफ इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच एक्चुअली सजेस्ट और व्हिच एक्चुअली गवर्न कि ये मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा। ठंड का समय है, आप सभी लोग कलरफुल ड्रेस पहने हो, राइट? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कलर? अगेन द ओरिजिन ऑफ कलर इज नथिंग बट the way the electronic structure of that material is governed. कोई पर्टिकुलर एनर्जी जो है, अब लाइट है, हम इस यूनिवर्स में,
और ये जो यूनिवर्स है वो सिर्फ लाइट से भरा पड़ा है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव से भरा पड़ा है। और ये सारा का सारा लाइट हर समय आप चाहें या ना चाहें आप उससे घिरे हुए हो। हमारे मोबाइल के सिग्नल से, हमारे इस लाइट से, अगर ये लाइट ना हो तो सनलाइट से, अगर सनलाइट ना हो तो भी कुछ जीरो एनर्जी फ्लक्चुएशंस एंड कुछ रेडिएशंस जो है हमेशा हमारे चारों तरफ है। तो ये जो रेडिएशंस हैं ये हमेशा हमारे मटेरियल्स के ऊपर गिर रहे होते हैं और वो मटेरियल उसके हिसाब से अपना रिस्पॉन्स दिखा रहा है। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का है, इसका मतलब ये हुआ कि उस मटेरियल के ऊपर जितने भी लाइट गिरी उसने उस सबको एब्जॉर्ब किया और सिर्फ ब्लू को रिफ्लेक्ट किया। नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दैट मटेरियल will depend on what? It will depend on the electronic structure, number one. Number two, it will also depend on the incident light's wavelength. Right? ये दो चीजें जो है डिसाइड करेगी कि जब उस कोई लाइट उस मटेरियल के ऊपर गिरता है तो वो मटेरियल हमको कैसा दिखेगा। आप सब लोग बहुत अच्छे दिख रहे हो। द मोमेंट मेरा चश्मा जो है एक्सरे सोर्स का हो जाए तो आप सभी के सभी हड्डियों के ढांचे दिखो। क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है, उनका जो पेनिट्रेशन है वो एक नॉर्मल विजिबल रेंज के लाइट से इंटायरली डिफरेंट है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश हियर इज दैट द इंटरेक्शन ऑफ द मटेरियल विद द फोटोन, फोटोन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्वांटा। तो ये जो आपका इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन डिपेंड करता है नंबर वन उस मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नंबर टू जो फोटोन गिर रहा है जिसके द्वारा आप उसको प्रोब कर रहे हो उस फोटोन का एनर्जी क्या है, उस फोटोन की इंटेंसिटी कितनी है। ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करती है। अब मैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है क्या? मैं विज्ञान के दरबार में खड़ा हूं तो किसी भी एलिमेंट की आप बात कर लो, किसी भी मटेरियल की बात कर लो, टाइटेनियम ऑक्साइड की बात कर लो, जिंक ऑक्साइड की बात कर लो, आयरन की बात कर लो, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसकी बात कर लो। आई होप आप में से किसी का नाम श्रद्धा ना हो। ठीक है, तो मान लीजिए हम टाइटेनियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो टाइटेनियम का देख लो ना, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 then 3d2 4s2। ठीक है, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ये बड़े समझदार हैं। दे फॉलो ए सर्टेन रूल, they do not follow a दरभंगा ट्रैफिक रूल कि हाँ उनको पता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर चारों ओर पहले कक्षा में ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, उसके बाहरी कक्षा में 10 हैं और फिर 2। दे आर वेरी स्मार्ट। और इस चीज को प्रूव किया किसने? बोरबरी का रूल हम लोग क्लास 8 से पढ़ना शुरू कर देते हैं, 7 या 8 से। So these electrons follow a certain energy scales. What does that mean? ये ऑर्बिट्स क्या है? ये ऑर्बिट्स हैं एनर्जी का क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रॉन्स फॉलो ए सर्टेन रूल, वो पक्के हैं अपने ईमान के कि हम सिर्फ इसी एनर्जी से चक्कर लगाएंगे न्यूक्लियस के चारों ओर। पहले ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, दूसरे ऑर्बिट का एनर्जी कुछ और है, तीसरे ऑर्बिट का एनर्जी कुछ और है, बीच वाला एनर्जी वो नहीं लेते हैं। ये तो टाइटेनियम की कैरेक्टर हुई। यही हाल है ऑक्सीजन का। अगर आप ऑक्सीजन को देख लो तो 1s2 2s2 2p4 है ना, लेकिन अभी जब ये टाइटेनियम ऑक्साइड बनता है, आप लोग केमिस्ट्री के हो, हमसे अधिक जानते हो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, टाइटेनियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने हैं। कितने समझदार हैं, ये देने के लिए तैयार, ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार, एंड देन दे फॉर्म टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2, राइट। तो जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो कंपाउंड बनाते समय हो क्या रहा? ऑक्सीजन का जो 1s इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस के एकदम नजदीक होने के कारण बेचारा फंसा हुआ, वो ज्यादा अपना एनर्जी चेंज नहीं कर पाता।
जो दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है 2s, वो भी लगभग न्यूक्लियस से थोड़ा सा ही नजदीक है कि नहीं? ओके, चलो छोड़ देते हैं। जस्ट इमेजिन करो, अभी तो लंच का टाइम है, ये दरवाजा बंद हो और पीछे का दरवाजा खुला होता, ठीक है, और मैं समझ लो न्यूक्लियस हूं। I mean, a normal teacher who comes to take your class, तो जो पहले रो में जो बच्चे बैठते हैं वो सोचते हैं भूख लगी है, कैसे निकले, टीचर के एकदम सामने है, निकलेंगे तो डांट पड़ेगी। जो सबसे पीछे बैठे हैं they have an opportunity, चुपचाप निकल। क्यों? क्योंकि जो नियरेस्ट है उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी जो है सबसे ज्यादा है। कूलम्ब एनर्जी को देख लो, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। R जैसे ही कम हुआ तो कूलम्ब फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाएगा। जो सबसे लास्ट रो में बैठे हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगी, है कि नहीं? तो बंधन तो कोई भी नहीं चाहता है, हर कोई मुक्ति चाहता है। तो जिनको भूख लगी वो पीछे से ही आराम से निकल लेंगे। लेकिन जो नियरेस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अच्छे बच्चे की तरह दे बिहेव लाइक एन ओबीडिएंट स्टूडेंट, ऑनेस्ट स्टूडेंट, ड्यूटीफुल स्टूडेंट, स्टूडियस स्टूडेंट है, तो उनके एनर्जी में ज्यादा चेंज नहीं होता है। एग्जाम के बाद भी उनकी एनर्जी वैसी ही रहती है। आउटर मोस्ट वालों की एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है क्योंकि वो फर्मी लेवल के नजदीक है। फर्मी लेवल, ये क्या नाटक है? तो होता क्या है कि जब आप ये जिंक ऑक्साइड बना रहे हो या टाइटेनियम ऑक्साइड बना रहे हो, तो जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, टाइटेनियम एटम आया, ऑक्सीजन एटम आया, दोनों के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक दूसरे को हाई हेलो बोलते हैं। हाई हेलो का मतलब क्या? कूलम्बिक इंटरेक्शन। उनके पास चार्ज है, चार्ज इज द ओनली वे थ्रू व्हिच दे इंटरेक्ट, दैट इज देयर हाई हेलो, राइट? सो व्हेन दे इंटरेक्ट, तो उस केस में होता क्या है, द कोर इलेक्ट्रॉन्स मींस दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, उन इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा चेंज नहीं होती है। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बीच ओवरलैपिंग होता है ऑर्बिटल्स का। तो उस ओवरलैपिंग के कारण आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, पहले जो 1s का एनर्जी फिक्स था, 2s का एनर्जी फिक्स था, वो फिक्स ना होकर के एक बैंड बना देता। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी बैंड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, ठीक है? अब हुआ क्या कि किसी भी मटेरियल में जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अभी भी चूंकि बैंड में है, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। वो निकलना तो चाह रहे लेकिन क्लासरूम है, नहीं निकल पा रहे, दे आर स्टिल बॉन्डेड, ठीक है? तो उनको एक्साइट करके जब आप कंडक्शन बैंड में भेज दोगे तो वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आपका कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और रेजिस्टिविटी या करंट फ्लो में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? तो जो मेटल्स होते हैं, उन मेटल्स के सिस्टम में होता क्या है कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उनके बीच गैप नहीं होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में वो पहले से ही दे आर बिहेविंग लाइक ए फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो इंसुलेटर्स हैं, उनमें होता क्या है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को रियली फ्री होने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से दे फील ए काइंड ऑफ बैंड गैप। ये जो बैंड गैप है आपका, वो डिसाइड करता है कि कोई गिवन मटेरियल ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा। उसको हम कैसे प्रूव करेंगे, क्या क्या ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग वो कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बंधु फुल स्क्रीन पे अगर जा सकें तो बेहतर होगा, और मैं घुमा दूं ताकि मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में हो, आप हमें नियंत्रित ना करें। अच्छा, गुड, एक्सीलेंट, हाउ डू आई डू दैट? या फैंटास्टिक। सो ठीक है, फाइन। So before coming to those advanced characterization techniques, friends, I will introduce myself. I am Ramjan Chaudhary from UGC DAE Consortium for Scientific Research, and the mandate of our consortium is to promote, encourage and support research
using mega facilities among different universities and research institutes. And what are those mega facilities which are created by Department of Atomic Energy? They are neutron beam at Dhruva Reactor Bhabha Atomic Research Center, Mumbai, Indus Synchrotron Source at RRCAT, Indore, Cyclotron Variable Energy Cyclotron Center in Kolkata, and Low Energy Accelerator at IGCAR, Kalpakka. So these are the 4 important mega facilities created by Department of Atomic Energy, and accordingly you will see that in this Indian map, our consortium is located at 4 different places. Indore is the main center of all these 4 branches, and there are wide range of facilities which are available at our consortium, and I will just list some of them. These are the beam lines which are available at synchrotron radiation source. नाम पे मत जाना, सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है. We will just discuss about all these things detail in a rather हमारी आपकी भाषा में, है ना? Okay, so these are different sets of experiments which can be done at these different beam lines, and the energy ranges are also given. And some in-house facilities are like thin film deposition के लिए ये कई सारे टेक्निक हैं, UHV, electron beam evaporation, sputtering, ion beam sputtering, pulse laser deposition, and things of that nature. Scattering techniques या जो diffraction process है, उसके लिए कई सारे systems हैं. Advanced X-ray diffraction system है, high resolution X-ray diffraction and reflectivity setup है, magnetic field dependent X-ray diffraction है. Again, for spectroscopic technique, wide range of facilities are there. So please remember, we have a wide range of facilities for creating different properties. जब हम कोई मटेरियल बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पस होता है, that we want to tune optical property, we want to tune magnetic property, we want to tune resistivity property, or we want to tune any sort of property. So therefore, to probe those properties, we must have an understanding how to characterize them, and therefore we have a different set of facilities available. I encourage and request you all that whoever feel that a particular facility is good for your research purpose, please feel free to contact us. You can write to us, you can visit our webpage, which is csr.res.in, and there you will see all the details which are available. You do not have to depend on a particular scientist whether he or she knows you or not. Actually, आप लोग मालिक हो उस institute को. Let me put it this way, so that there is no hesitancy as far as applying for these beam lines are concerned. Okay, so please go to that particular web page, and there are user portals available. आप just online अपने requirement को fill करो वहाँ पर, and the concerned scientist will give you time depending on the slot availability and the rush in that particular facility. Okay, so please feel free to use these facilities. So these are the facilities which are available at our Indore center. Similarly, for Mumbai center, again we have, as I said, that besides using this Dhruva reactor which is at BARC, you have many other in-house facilities also. Similarly, for Kolkata center also, those who may like to visit Kolkata, because Kolkata is nearer than Indore. So even in Kolkata we have wide range of in-house facilities for materials characterization, so they can visit that Kolkata center also. और अगर जिनको साउथ में घूमना है, समंदर किनारे जाना है, वो कलपक्कम चले जाएं. But remember, I'm saying it on a lighter note that जिनको घूमने जाना है. See, the point is, once you start doing research, तो घूमना जो है अपने priority में, अपने list में सबसे नीचे आ जाता है. Because you are more responsible in your thought process, you are more worried about your research problem, you want to solve a particular scientific problem. That is more important, and that should be focus of your attention, right? So you must see that which particular facility in which particular center is suitable for your research purpose, and accordingly you plan your experiments, you plan your visit. Okay, so this is what I will suggest all of you to follow. Now, चूंकि बात फोटॉन से शुरू हुई है, तो आई विल कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट फोटॉन. फोटॉन्स हैं क्या? तो फोटॉन्स तो हमें जो सबसे पहली बात हमें समझ में आया कि एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से आ गया? अब जस्ट बोरबरी के पास जाइए, उन्होंने एक रूल बहुत अच्छा सा बना दिया और वो हमें अभी तक याद है. इलेक्ट्रॉन अच्छे बच्चे हैं, दे रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी.
without losing or without gaining any energy. But they lose energy or they gain energy only when they change their orbits. अब कोई इलेक्ट्रॉन क्यों अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, वो भी तो एक प्रश्न है ना भाई. once you say that electrons revolve in a fixed orbit, then why they should change its energy? The answer is इलेक्ट्रॉन बेचारे तो इसलिए चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल नहीं रहा है जंप करने के लिए. जैसे ही एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा दे विल इमीडिएटली गो टू द हायर एनर्जी लेवल. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ बैंड गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. ठीक है, मान लो कि टाइटेनियम ऑक्साइड का बैंड गैप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मान लो हमने उनके ऊपर कोई ऐसा लाइट डाल दिया जिसका एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. क्या वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? जो हां में है वो हाथ उठाए, जो ना में है वो हाथ उठाए. नहीं में एक हाथ उठा. और ठीक है, थैंक यू. हां वाले हाथ उठाए. इसका मतलब ये हुआ कि आप सब लोग परिचित हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने मतलबी हैं. इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी तभी एब्जॉर्ब कर रहा है जबकि उसको एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास एक अवेलेबल एनर्जी स्टेट मिल रहा हो. चूंकि बैंड गैप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के वो बेचारा उड़ेगा भी तो कोई एनर्जी स्टेट मिलेगा नहीं, वो भटकती आत्मा रह जाएगी. मृत्यु तो हो गई लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो बेचारे वापस से. सो दैट इज व्हाई आई से दैट इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक मतलबी इलेक्ट्रॉन्स. They exactly know that what are their energy states and how much energy they have to absorb, right? So please remember that when I say that there is a band gap, that means we are talking about the electrons available states. कोई भी जो प्रोसेस हो रहा है वो सारा प्रोसेस सिर्फ 2 कारण से होता है. नंबर 1, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी है. नंबर 2, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है. बस यही 2 चीजें हैं जो सब कुछ गवर्न करती है. चाहे आपका एक्सरे डिफ्रैक्शन हो, चाहे एक्सरे फ्लोरोसेंस हो, चाहे यूवी विजिबल हो, चाहे रिफ्लेक्टिविटी हो, व्हाटएवर प्रॉपर्टीज दैट वी प्रूव, all these things are governed by either binding energy or the electronic configuration of the element which is being considered in that particular material, right? So this is quite important. Okay, so what I was trying to say that electrons excite क्यों करेगा? Electrons excite तभी करेगा जबकि इंसिडेंट फोटोन एनर्जी इतना हो कि उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड मोड में जाए. ये जो हम लोग बल्ब देखते हैं, बल्ब से जो लाइट निकलती है वो क्यों निकलती है? क्योंकि वो जो थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रिगर किया कि वो एक्साइटेड स्टेट में गया. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है वापस से बोरबरी की आत्मा आ जाती है. दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी स्टेबल इन दैट पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जहां पर लोअर एनर्जी स्टेट में आपका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो और तब भी इलेक्ट्रॉन आपका हायर एनर्जी स्टेट पे हो. तो वो क्या करता है? इट अगेन पुल्स बैक दैट इलेक्ट्रॉन टू द ओरिजिनल स्टेट. सो द एक्साइटेड लाइफ टाइम इज वेरी स्मॉल, ऑफ द ऑर्डर ऑफ से -8 सेकंड, 10 to the power -8 सेकंड और सो. तो उतना देर एक्साइटेड स्टेट में रहने के बाद वापस से वो इलेक्ट्रॉन जब वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो आपका हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे जा रहा है. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट एनर्जी डिफरेंस इज नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको कि हम फोटॉन्स के द्वारा क्वांटिफाई करते हैं, राइट? सो ये सब कुछ सारा खेल फोटॉन्स का है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है. तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज पार्टिकल हैं, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल हैं तो सबसे पहला आंसर जो अपने दिमाग में आता है वो ये कि चार्ज पार्टिकल है तो इसके साथ एक एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. नंबर 1. नंबर 2, दूसरा रूल जो अपने को ध्यान में आता है, द मोमेंट वी गिव मोशन टू द इलेक्ट्रॉन इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड. बायो-सावर्ट लॉ, क्लास 7-8 रूल. ठीक है, कि कहीं भी करंट होगा तो इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो कोई भी मूविंग चार्ज है सो इट हैज एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड.
लेकिन उसी इलेक्ट्रॉन को जब मैं एक्सेलरेट कर देता हूं तो वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट करता है, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दे आर नथिंग बट द सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, राइट। तो हमेशा कोई भी मूविंग चार्ज आपको सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन नहीं देता है। When electrons speed is of the order of that of the light, रिलेटिविस्टिक स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो और उसको आप फोर्स करें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कि अपना डायरेक्शन चेंज करो, तो जैसे ही डायरेक्शन की बात आती है तो वैसे ही एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। तो that is why whenever the electrons are forced to take a circular path by some bending magnet, they create a synchrotron radiation. The importance of the synchrotron radiation is that it is a highly intense synchrotron beam. Its brilliance is very, very high. It is highly polarized, right? And importantly, ये जो रेडिएशन एमिट करता है एक वाइड रेंज के फोटोन एनर्जी को कवर करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं बोलता हूं वाइड रेंज ऑफ फोटोन एनर्जी कवर करता है, तो आप इसको ऐसे समझें, मैं टाइटेनियम ऑक्साइड का ही एग्जांपल पकड़ के रख रहा हूं ताकि आसान हो मुझे समझाने में और आपको मुझे काउंटर करने में। जब मैं टाइटेनियम ऑक्साइड के बैंड गैप की बात कर रहा हूं, बैंड गैप कितना है 3.2, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे जो लो एनर्जी फ्लक्चुएशंस को अगर प्रोब करना होगा तो हमें ऐसा फोटोन चाहिए जिसका एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो, नंबर 1। नंबर 2, अगर मुझे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को प्रूव करना होगा तो वैलेंस बैंड कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि निकलने के लिए तैयार है, आउटर मोस्ट में है लेकिन बेचारे नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनका जो एनर्जी बैंड है वो करीब 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो उसको अगर प्रूव करना होगा तो हमारे पास ऐसा इंसिडेंट फोटोन होना चाहिए जो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का वहां पर लाइट डाल सके, ताकि जो जिन इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी से 50 से कम है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और जो बचा हुआ एनर्जी है उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल के चले जाए, ठीक है। मान लो हमें टाइटेनियम का 1s का इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसको प्रूव करना है, तो टाइटेनियम का 1s इलेक्ट्रॉन मैंने कहा था न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसके लिए आपको करीब 500-600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो वो 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहां से आएगा? ऐसा तो है नहीं कि आप ये लेजर टॉर्च से ये सारे एनर्जी को कवर कर पाओगे, इस लेजर एनर्जी का उतना है नहीं वैल्यू। That is why you need a synchrotron source, because synchrotron source allows you a tunability of incident photon energy. आप फोटोन एनर्जी को सेलेक्ट कर सकते हो, आपको 700 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो उस हिसाब से फोटोन एनर्जी सेलेक्ट कर लो, आपको 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए उस हिसाब से फोटोन एनर्जी सेलेक्ट कर लो। That is why I am saying that for doing different sets of experiments, जैसे अगर मान लो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी या कोर लेवल की एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो आपको फ्यू हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटॉन्स की जरूरत होती है, ठीक है। सो आई विल कम टू दोज एस्पेक्ट्स वन बाय वन एज द टाइम प्रोग्रेसेस। सो दैट इज ऑल अबाउट सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, फाइन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज दैट इज हाउ दिस इंडस सिंक्रोट्रॉन, इंडिया में यूनिक फैसिलिटी है जो सिर्फ इंदौर में है, वो RR-CAT में है, एंड दे आर इंडस 1 एंड इंडस 2 सिंक्रोट्रॉन सोर्सेज। इंडस 1 synchrotron source is 450 mega electron volt, whereas Indus 2 is 2.5 GeV synchrotron source, right? और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को ले जाकर के यहाँ पर ये लीनियर एक्सीलरेटर के द्वारा इस बूस्टर में उसको इतना घुमाया जाता है कि उसकी एनर्जी जो है बढ़ता जाए, और बाद में जब वो एनर्जी बढ़ जाता है तो उसको फिर वापस से इस इंडस 1 सिंक्रोट्रॉन बीम में ले आया जाता है। और आप देख सकते हैं इस इंडस 1 सिंक्रोट्रॉन बीम में ये एक बेंडिंग मैग्नेट है। बेंडिंग मैग्नेट जो है एक सर्कुलर टाइप का हाफ सेमी सर्कुलर मैग्नेट होता है, जिसके द्वारा जिसके सेंटर में आप इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करते हो जाने के लिए, और इलेक्ट्रॉन जैसे ही उस बेंडिंग मैग्नेट में जाता है तो बेंडिंग मैग्नेट क्या करता है, QV क्रॉस B, सिंपल सा अपना रूल था, ठीक है। तो व्हाट इट क्रिएट्स, इट
it forces that electron to take the circular path. और उस सर्कुलर पाथ में जैसे ही गया उसमें एक्सेलरेशन आया, जैसे ही एक्सेलरेशन आया उससे सिंक्रोट्रॉन बीम निकलने शुरू हो गए। और फिर that is why you will see different sets of experiments। जितने बेंडिंग मैग्नेट हैं हर बेंडिंग मैग्नेट पे दो बीम लाइन निकले हैं, तो दो सिंक्रोट्रॉन बीम निकल रहे हैं और अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप कर सकते हैं। किसी को डिफ्रैक्शन करना है, किसी को फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, किसी को एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करना है, तो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल टूल्स हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टेशंस हैं इन सारे बीम लाइंस के ऊपर। ओके, ये जो है हमारा इंडस वन सिंक्रोट्रॉन सोर्स दिखता है, आप देख सकते हैं ये एक बेंडिंग मैग्नेट है, ये एक बेंडिंग मैग्नेट है और इन सब से जो है ये बीम निकले हुए हैं। इन सारे बीम से जो है सिंक्रोट्रॉन बीम निकल रहे हैं और ये सब डिफरेंट एनर्जी रेंज अवेलेबल है इन सारे बीम लाइंस पे। ये इंडस 2 जो है उसका रेडियस और भी बड़ा है और उसका रेडियस बड़े होने के कारण जो उनका एनर्जी रेंज है वो भी अलग अलग है। नाउ कमिंग बैक टू द अगेन आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक सिंपल सा मैंने ये रखा है, इमेजिन कर लो कि हम सिर्फ टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड तक ही सीमित है। तो जैसा मैंने कहा कि 1s इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी स्टैटिक है, वो नहीं चेंज हो रहा है। 2s इलेक्ट्रॉन, 2p इलेक्ट्रॉन ये सब जो है ठीक है, उनकी एनर्जी में ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल परटर्बेशंस। बट योर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक सेल, the moment it comes in the vicinity of the other element, they form a kind of band. That is why I am treating them like a valence band. ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? Okay, fine, no problem, we can continue our discussion. What is photoelectric effect? We shine a photon on the material and what it does? It ejects an electron. ये photoelectric effect, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए हमको कितना फोटोन की एनर्जी चाहिए बता सकते हैं? मान लो कि हमारा जो मटेरियल है TiO2 की बात अगर कर ले, ठीक है, तो TiO2 इलेक्ट्रॉन में हम दो तरह के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो जो आपके कोर लेवल में है, तो उस कोर लेवल की बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं 650 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड में है जिसका बाइंडिंग एनर्जी मान लेते हैं 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट। तो क्या हमारा अगर इंसिडेंट फोटोन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? निकलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी? माइनस कर देंगे। जो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, उनका डिफरेंस ले लेंगे तो वो हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है, कोई समस्या है? मुझे समस्या है। दिस इज नॉट करेक्ट, आई टेल यू व्हाई इज दिस नॉट करेक्ट। दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज इफ यू गो बैक टू योर ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, वो ये पढ़ते हैं दैट यू, चलिए इससे पहले कि हम उस चीज को डिस्कस करें, हम लोग मेटल को लेके आते हैं। कोई मेटल सरफेस लेते हैं, आयरन की बात कर लेते हैं, कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर या जब मैं मेटल सरफेस की बात कर रहा हूं तो उसकी यूनिक क्या है, यूनिकनेस क्या है? उसका यूनिकनेस है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, ठीक है। जब मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो सचमुच फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है। क्यों नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? बैठ गए प्लीज, मुझे ही आज खड़े रहने दीजिए। हाँ, जैसे वो मेटल है ना, तो उसमें बहुत सारा एटम है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन है तो सब जगह ट्रांसफर रहेगा ना, वो पूरे में रिवॉल्व करते रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन किसी न्यूक्लियस का वफादार नहीं है वो, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में है। जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में गया, नाउ इट इज नो मोर ए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विथ ए स्पेसिफिक न्यूक्लियस। इज दैट राइट? तो मेरा प्रश्न ये है कि वो क्यों कंप्लीटली फ्री नहीं है? कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, हाँ प्लीज। सर्टेन बाइंडिंग फोर्स, व्हाट इज दैट सर्टेन बाइंडिंग फोर्स? न्यूक्लियस नहीं है, अगेन द सेम थिंग।
Work function. What is origin of work function? Fantastic. I like that. What is origin of work function? How do we define work function? The minimum energy required to eject the electron from the surface of a metal. My question is, why do we need that minimum energy? Because electrons are in valence band. Electrons are not in valence band. Electrons are in conduction band. That is why I am saying they are metallic. Why do we need that minimum energy? होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो वो भी आपके ही तरह हमारी तरह मनोवृत्ति के प्राणी हैं, उनको भी कोई बंधन अच्छा नहीं लगता है, बेचारे कहलाए जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी मटेरियल नहीं छोड़ पाते, because the moment those electrons try to escape the surface, it creates a hole behind it. और वो जो एक वर्चुअल चार्ज क्रिएट होता है which is positive in character, it starts pulling back. अभी न जाओ छोड़ के. It will not allow that electron to leave the surface. That is why you will require a minimum threshold energy to eject that electron. That is what we call as work function. Right? ठीक है. अब मैं वापस से प्रश्न पे आता हूं. हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड है, कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंसिडेंट फोटोन एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कुछ तो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करने में जाएगा और कुछ तो वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में जाएगा. जो बची एनर्जी है वही उसका जीवन है, वही उसका काइनेटिक एनर्जी है. अगर आप उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिटेक्ट कर लिए, आपको पता चल जाएगा कि उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना था. ठीक है, तो यही कहानी है. तो होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आप ये देखिए, जो बाइंडिंग एनर्जी है that is given by incident photon energy. काइनेटिक एनर्जी आप मेजर कर सकते हो. इलेक्ट्रॉनिक्स आज के तारीख में इतनी डेवलप हो गई है कि आप उसको मेजर कर सकते हो, और आपको वर्क फंक्शन पता है तो आप बाइंडिंग एनर्जी मेजर कर सकते हो. तो मान लो कि ये TiO2 है, इसके ऊपर मैंने 1400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, और इस इलेक्ट्रॉन की अपनी बाइंडिंग एनर्जी है मान लो 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ऑल दैट. तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 1s से भी निकलेगा, 2s से भी निकलेगा, 2p से भी निकलेगा. जिन जिन इलेक्ट्रॉन की जो जरूरतें हैं, जो बाइंडिंग एनर्जी उस इंसिडेंट फोटोन एनर्जी से कम है, उनको एब्जॉर्ब करके वो निकल लेगा. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. तो जब हम इंसिडेंट एक्सरे यूज करते हैं, एंड फ्रेंड्स आई टेल यू, इसको एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी को केमिस्ट्री में लोग इसका बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस. कई सारे अननोन मटेरियल हैं जिसमें अननोन एलिमेंट्स हैं, अपने को नहीं पता कि कौन से एलिमेंट है, लेकिन रूप व्यक्ति सत्य है, नाम समाज सत्य है. जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उन इलेक्ट्रॉन्स का अपना एक चरित्र है, वो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, हाइड्रोजन के 1s इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कार्बन के 1s इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से अलग होगी. ऑक्सीजन के 1s इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से अलग होगी. कार्बन का 1s इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी 284 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ऑक्सीजन का 1s का बाइंडिंग एनर्जी 530 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. आप बोलोगे 1s तो दोनों में है, तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी क्यों है अलग? कोई बताएंगे क्यों है अलग? क्योंकि चार्ज स्टेट अलग अलग है न्यूक्लियस के. एग्जैक्टली राइट. तो चूंकि उनके चार्ज स्टेट अलग अलग हैं, जैसे ही आप जेड नंबर बढ़ाते जाओगे, आपकी बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है. तो बाइंडिंग एनर्जी जो है हर एलिमेंट का, चाहे 1s का हो, 2s का हो, 2p का हो, वो उनके चरित्र हैं. जैसे हमारा फिंगरप्रिंट, हमारे आंख का रेटिना जो हम लोग आजकल आधार कार्ड में यूज करते हैं, वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है.
इसी तरह से इन इलेक्ट्रॉन्स, इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी स्टेट्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट स्टेट्स, दे आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं तो अपने को पता है, ठीक है, इसमें 530 पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, ठीक है, तो पता लग गया कि हाँ ठीक है, इसमें जो है ऑक्सीजन है। 284 पे हमको पीक मिल रहा है, तो 284 का मतलब हुआ कि कार्बन है इसमें। 709 पे पीक मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ इसमें आयरन है। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो उनका कैरेक्टरिस्टिक बतलाता है। और इसी के द्वारा, अच्छा चलो एक चीज पूछता हूं, मान लो सिलिकॉन का या आयरन का ही पकड़ के चलते हैं। आयरन का बाइंडिंग एनर्जी 2p लेवल का 706 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, आयरन मेटल केस में। अब अगर हमारे सिस्टम में Fe2O3 है, अब आयरन का चरित्र देखिए क्या है। आयरन जो है मेटेलिक स्टेट में भी रह सकता है, आयरन FeO फेज में भी रह सकता है, आयरन Fe2O3 फेज में भी रह सकता है, आयरन Fe3O4 फेज में भी रह सकता है। अंतर क्या है इन सारे फेजेस में? ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक स्टेट, चार्ज स्टेट। तो अब बताओ, जो Fe मेटेलिक में चार्ज स्टेट कितना है? 0। Fe2O3 में कितना है? 3+, राइट। तो मान लो Fe2p कोर लेवल की बाइंडिंग एनर्जी 706 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मेटल केस में, तो Fe2O3 की 706 से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, एग्जैक्टली, राइट। सो by understanding the binding energy, you can also get an idea about the ionic state of the element present in your material. Is that clear? Exactly. So this is what I will show you that how it is actually done. तो जब आप कोर लेवल को प्रोब करते हो, तो कोर लेवल देखिए, इलेक्ट्रॉन का अपना चरित्र होता है, एलिमेंट का अपना चरित्र होता है, वो ज्यादा नहीं बदलता है बाहरी वातावरण से। लेकिन वैलेंस बैंड के बारे में आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड जो है ना, ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूशन है उसमें, और जो आयरन है या टाइटेनियम है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का भी कंट्रीब्यूशन है। सो वैलेंस बैंड इज बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स, बट नॉट द कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मटेरियल। तो कोई अननोन मटेरियल है, उसको अगर हमें प्रोब करना होगा, आई विल सिंपली यूज इसका कोर लेवल की बाइंडिंग एनर्जी हमने चेक कर लिया, तो हमको क्या क्या पता चल जाएगा? कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का आयनिक स्टेट कितना है, उस एलिमेंट का स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या हुआ? किस रेशियो में वो केमिकल एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे मैं YbCO की बात करता हूं, Y1Ba2Cu3O7, राइट। इसका नाम सुना है आपने YbCO का नाम किसी ने? YbCO जो है हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर है, बहुत ही नॉन सुपरकंडक्टर है। तो इसमें जो इट्रियम, बेरियम, कॉपर और ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? 1:2:3:7, राइट। ठीक है, तो ये उनकी बातें हुई। तो that is how we get an idea about the X-ray photoelectron spectroscopy और इसका, right? But valence band जो है ना, that will just give you information कि आपका सिस्टम इंसुलेटिंग है या आपका सिस्टम मेटेलिक है या क्या है। ठीक है, तो उन चीजों को थोड़ा सा हम देखेंगे। So ये that is how this spectra looks like। ये जो है कोई अननोन मटेरियल था, लैंथनम स्ट्रोंशियम मैग्नीज ऑक्साइड। तो उसका जब आप देखोगे, ये अगेन द सेम स्कीमेटिक्स, जब आप नीचे कोर लेवल से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो XPS होता है। जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकालते हो, अच्छा वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? तो थोड़े से ही काम चल जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अंडरस्टैंडिंग है अपनी, तो लोग उससे जो है अपना काम चला लेते हैं। लेकिन आप ये देखिए, तो ये जो है इसमें लैंथनम का भी पीक मिलेगा आपको, स्ट्रोंशियम का भी, मैग्नीज का भी, ऑक्सीजन का भी, ये सारे के सारे जो है निकल के चले जाते हैं। तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, दे आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम मेजर कर लेते हैं और फिर उसके द्वारा उसका बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये स्पेक्ट्रा, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 0, 2, 4, 6, 8। बताइए, ये वैलेंस बैंड है या कोर लेवल स्पेक्ट्रा है?
कोर लेवल स्पेक्ट्रा में बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए यहाँ ये फ्यू थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, यहाँ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। जब मैं ये बाइंडिंग एनर्जी बात करता हूं तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि वो फर्मी लेवल से जस्ट नीचे है। फर्मी लेवल का क्या मतलब हुआ? फर्मी लेवल वो एनर्जी लेवल है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है लगभग बंधन मुक्त हो जाता है। दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट? सो दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर जस्ट इन द वैलेंस बैंड स्लाइटली बिलो द फर्मी लेवल, वो मिनिमम एनर्जी जिसके द्वारा वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएं, ठीक है, दैट इज द वैलेंस बैंड। ओके, सो यू कैन सी दैट द बाइंडिंग एनर्जी इज very small. That is how you can make a distinction. Just उसका बाइंडिंग एनर्जी स्केल देख लो, अच्छा ये वैलेंस बैंड है, ये कोर लेवल स्पेक्ट्रा है, ठीक है? That is how we make a distinction. अब चलिए, इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आप लोगों को सूचित करना चाहूंगा जो एस्का में काम करते हैं। वो ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है, हर टेक्निक की विशेषता तो हम लोग खूब बखान करके बताते हैं, इतना ग्रेट है, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिटेशन है। जो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो है हाईली सरफेस सेंसिटिव टेक्निक है। जब मैं सरफेस की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरली जब हम मटेरियल बनाते हैं तो उन मटेरियल्स का थिकनेस आपका 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन टेक्निक्स एंड ऑल दैट। लेकिन ये जो प्रोब करता है मुश्किल से टॉप 1 नैनोमीटर को प्रोब करता है, उसके नीचे को नहीं प्रोब करता है। कारण क्या है इसका? इसका मेन कारण ये है, आप मेजर क्या कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी मेजर कर रहे हो। यानी कि ऐसा कोई भी फैक्टर जो उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता हो, वो जो है आपके मेजरमेंट एक्यूरेसी को कंप्रोमाइज कर देगा, ठीक है? अब देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स तो आपके मटेरियल में माइक्रोन लेवल तक चले जाते हैं। द पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ फोटोन इज few hundreds of nanometer, even in micrometers, right? तो इलेक्ट्रॉन्स तो माइक्रोमीटर नीचे से भी निकले, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सारे के सारे चार्ज पार्टिकल। अब चार्ज पार्टिकल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो निकले और बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को देखा, कहा भैया कैसन हो, हालचाल सब ठीक है। द मोमेंट दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग, इंटरैक्शन मीन्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दे लूज एनर्जी। What do you want? You want to measure the binding energy, और उस बाइंडिंग एनर्जी को मेजर करने के लिए ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले, आप चाहते हो वो एकदम अच्छे बच्चे की तरह जैसे ही निकले सीधा वो डिटेक्टर तक पहुंचे, और डिटेक्टर तक पहुंचने से पहले अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जो उस इलेक्ट्रॉन का दिमाग खराब कर दे, जिसके साथ वो इंटरेक्शन शुरू कर दे, तो वो एनर्जी लूज कर देगा। So that is why, since electron is a charged particle, therefore the minimum free path for this range of energy is 1 nanometer or so. Minimum free path का मतलब क्या हुआ कि वो minimum distance जिस distance से पहले इलेक्ट्रॉन किसी से भी नहीं मिलता, that is your minimum free path. So 1 nanometer is its minimum free path. So that is why it is a highly surface sensitive technique, and this is better shown here. आप ये देखिए कि ये LSMO है, लेंथनम का 4D का बाइंडिंग एनर्जी, स्ट्रॉन्सियम 3D का बाइंडिंग एनर्जी, लेंथनम के 4P का बाइंडिंग एनर्जी, ये सारे के सारे फीचर्स आप जो है इसमें देख सकते हैं। लेंथनम का 3P की बाइंडिंग एनर्जी करीब 1200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और लेंथनम के 4P का बाइंडिंग एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि 4P से 3P के बीच के में कितना एनर्जी का गैप हुआ, ये करीब 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सो ये सारी चीजें जो है आप लोग आसानी से प्रूव कर पाओगे, है ना? ठीक है। अब होता क्या है कि फोटोन तो गिरा, इलेक्ट्रॉन तो निकला। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है तो कहीं ना कहीं से तो निकल रहा है लोअर एनर्जी स्टेट से। तो जैसे ही लोअर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो वैसे ही जो हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देखता है यार यहाँ तो होल आ गया,
इलेक्ट्रॉन या एटम जो है अगेन अनस्टेबल हो जाता है, तो वापस से हायर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है उस होल को कंपनसेट करने के लिए चला जाता है। और जब वो वहां जाता है तो दो चीजें हो सकती है, या तो वो लाइट एमिट करे क्योंकि हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट की ओर आ रहा है, सो इट विल एमिट लाइट और रेडिएशन। जब ऐसा होता है उसी को हम लोग एक्सरे फ्लोरोसेंस बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लाइट ना निकले, इस लाइट के एनर्जी को यूज करके, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो एनर्जी है ना, उस एनर्जी को यूज करके उसके हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट कर दे। यानी कि कोई गिर रहा हो तो गिरने से पहले दूसरे को लात मार करके गिर जाए, तो दूसरा वाला भी जो है उसके चपेटे में आ जाता है। एग्जैक्टली व्हाट दीज इलेक्ट्रॉन्स डू, द मोमेंट दिस इलेक्ट्रॉन इज एस्केपिंग, this electron tries to come here, but before coming here it knocks out another electron from this level. तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है they are called as OJ इलेक्ट्रॉन और ऑगर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑगर इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब आपके मटेरियल के ऊपर फोटोन गिर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं और OJ इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं। इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो इनका डिस्टिंक्शन मित्रों ऐसा है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक बाइंडिंग एनर्जी है, और जो ओजे इलेक्ट्रॉन है उनकी कैरेक्टरिस्टिक काइनेटिक एनर्जी है। आप इंसिडेंट फोटोन एनर्जी चेंज कर दो तो जिस इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी ना चेंज हो वो आपके फोटो इलेक्ट्रॉन हो गए, और जिसकी एनर्जी चेंज हो गई वो आपके ओजे इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जितने भी आप इसका सिस्टम देखोगे उन इसका सिस्टम में दो एक्सरे सोर्सेज होते हैं, मात्र इसी चीज को चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसका की। और ये देखिए ये एक ममी था जो 2nd सेंचुरी का, और पहले लोग सोचते थे कि ममी को प्रिजर्व करने के लिए आयरन ऑक्साइड लपेटते हैं, लेकिन जब इसका का डेवलपमेंट हुआ तो एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस लेप का जो है उन्होंने इसका कर लिया, और उसके द्वारा इन्होंने देखा कि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड जैसा कुछ नहीं है, बल्कि उसमें जो है लेड है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। एंड दैट इज हाउ दे कुड रिकॉग्नाइज कि दे आर प्रिजर्विंग ममी बाय यूजिंग सम लेड ऑक्साइड, इट वाज नॉट आयरन ऑक्साइड। So this, I mean, as I said, that this shows the utility of the facility, that you can get an idea about the unknown element present in the system. Okay, so okay, let me just quickly tell you about. Okay, there is another technique which is called as X-ray absorption spectroscopy. बात वही है एनर्जी डिफरेंस की। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एक महीन सा अंतर है वो मैं बताना चाहता हूं। एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके इंसिडेंट फोटोन एनर्जी जो है वो फिक्स है, वहां बदल क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग एक्साइटेड, गेटिंग एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, राइट। बट इन एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी you vary the incident photon energy, and depending on the energy difference of the electron from the occupied state to unoccupied state, जैसे ही उसको उस गैप के बराबर इंसिडेंट फोटोन मिलता है वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के अनऑक्युपाइड स्टेट में चला जाता है। तो जब आप ये प्रूव करते हो तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। सो दिस इज ए very minute difference between this X-ray absorption spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy. That is why you will see that any spectra, whenever you come across, x-axis जो है आपका photon energy होता है and y-axis is your intensity. Whereas in X-ray photoelectron spectroscopy or photoelectron spectroscopy, what is your x-axis? Binding energy, right? So this is how we can make a distinction between different facilities. Okay, so friends, I will just quickly tell you a short story of utility of these techniques on some material which is known as dilute magnetic semiconductors. नाम बताता है आपको, dilute है, magnetic है, semiconductors है, ठीक है। जनरली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो नॉन मैग्नेटिक होते हैं,
पर्पस ये होता है, और जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जितने भी आपके लॉजिक डिवाइसेस हैं वो सेमीकंडक्टर्स के ऊपर है। तो पर्पस ये होता है कि अगर आप इसको मैग्नेटिक भी बना सकें तो आप इसको, मैग्नेटिक से होता क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस, तो आप स्टोरेज डिवाइस और लॉजिक डिवाइस को इंटीग्रेट कर सकते हैं एक सिंपल सिस्टम में। स्पिंट्रॉनिक्स में इसका यूटिलिटी होता है, एंड दैट इज व्हाई द यूटिलिटी, आई मीन फॉर इट्स यूटिलिटी एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस, कुछ रिसर्च हो रहे हैं डाइल्यूट मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर्स में। तो पर्पस इसमें यह है कि आपका नॉन मैग्नेटिक TiO2 है, उसको मैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ मैग्नेटिक इंप्योरिटी डाल दो। मैग्नेटिक इंप्योरिटी डाल दो तो मतलब यह है कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ही हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ऐसा क्यों होता है, सभी एलिमेंट्स क्यों नहीं मैग्नेटिक होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे। अभी के लिए तो मैं ये मान लेता हूं कि आप लोग ये जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आयरन, निकेल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सब जो है मैग्नेटिक एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि उनमें लोकलाइज्ड 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप आयरन डोप करते हो, जब आप देखो, हमने यहां पर वर्ड यूज किया है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या हुआ, डोपिंग का मतलब हुआ दैट द एलिमेंट दैट यू आर एडिंग इन दिस सिस्टम, इट इज टेकिंग ए लैटिस पोजीशन। कोई भी मटेरियल का अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मान लो TiO2 है, वो सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर मैं आयरन ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब हुआ कि आयरन इज रिप्लेसिंग टाइटेनियम फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, राइट? ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, जस्ट इमेजिन, ये फिजिसिस्ट का क्लास है और लोग मानते हैं कि फिजिसिस्ट जो होते हैं वो बोर होते हैं, राइट? तो हमारे वाइस चांसलर या जो कुलपति महोदय, सॉरी रजिस्ट्रार साहब आए थे, उनको लगा कि यार इनको थोड़ा सा मनोरंजन का साधन दिया जाए, कुछ म्यूजिशियंस को इनके साथ इंटरेक्ट करवाओ। तो उनका पर्पस ये है कि इस क्लासरूम से अच्छा सा म्यूजिक की आवाज आए, बाहर लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाए, राइट? तो उन्होंने एक म्यूजिशियन को बुलाया। अब वो क्या किए, कहीं पर जाकर के बैठ गए, ठीक है, आप लोगों ने अपना जगह दिया उनको, और वो वहां पर आपको बांसुरी सिखा रहे हैं या हारमोनियम बजा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। अब पता लगा कि यार इतना स्ट्रेंथ है तो उसमें एक म्यूजिशियन जो है पूरे क्लासरूम को नहीं सिखा पा रहा है, दूसरे म्यूजिशियन को भी बुलाओ। अब दूसरे भाई साहब आए, अब यहां पर क्या हो जाता है, भाई भतीजावाद हो जाता है। पहला म्यूजिशियन सोचता है, अरे यार वो फलाने भाई साहब तो वहां बैठे हैं, हम उन्हीं को पहचानते हैं, चलो वहीं जाकर के बैठते हैं। अब दूसरे भाई साहब भी वहीं जाकर के बैठ गए। यहां पर्पस क्या था दूसरे म्यूजिशियन को बुलाने का, कि यूनिफॉर्मिटी आए म्यूजिक इंफॉर्मेशन का। ऐसा ना हो कि पूरे क्लास से सिर्फ वो दो म्यूजिशियन आपस में म्यूजिक सीखें और म्यूजिक की चर्चा करें, और जो इंटेंशन था कि पूरे फिजिसिस्ट जो है म्यूजिक को सीख लें, वो पर्पस तो लॉस हो जाएगा। तीसरा म्यूजिशियन भी वहीं चलाए, क्योंकि एक एडॉप्टेबिलिटी होता है दैट इन ए फॉरेन कंट्री, किसी विदेश में भी आप जाओ तो कोई इंडियन दूसरे इंडियन को देख के ही जो दोनों एक साथ घूमने लग जाते हैं, एक नेचुरल माइंडसेट होता है, राइट? इसी तरह से जब आप TiO2 में आयरन डोप कर रहे हो सिस्टम को, तो ये भी जो है आयरन जैसे ही पहुंचता है, देखता है यार हम कौन से विदेशी दुनिया में आ गए, तो आयरन पहले एक एटम कहीं गया, जैसे ही दूसरा एटम आता है, इट ऑल्सो ट्राइज टू गो एंड ऑक्युपाई द सेम आयरन एटम। और जब ये सारे आयरन एटम आपके सिस्टम में जाकर के सेग्रीगेट कर गए, दे फॉर्म ए मेटल क्लस्टर, तो आपका पूरा मटेरियल तो मैग्नेटिक दिखता है, लेकिन जो पर्पस है कि आपका पूरा TiO2 मैग्नेटिक हो, दैट पर्पस इज लॉस्ट। So the important thing is that whatever iron that I am doping in the system, it should go and occupy the substitutional site and should be uniformly distributed throughout the material. Only then you will have a uniform magnetization coming. तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आयरन डोप कर रहा हूं इस सिस्टम में, तो आयरन मेटल क्लस्टर नहीं बनना चाहिए, आयरन सब्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे, कोई बता पाएगा हमको कि आयरन जो डोप किए हैं वो सब्स्टिट्यूशनल साइट पे गया है या नहीं? एंड दैट विल बी एंड ऑफ माय टॉक एक्चुअली। तो दो चीजें हो सकती हैं, आयरन जो हम डोप कर रहे हैं उसका आयनिक रेडियाई टाइटेनियम के आयनिक रेडियाई से डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे ही आयरन आपके लैटिस साइट को ऑक्युपाई करेगा, तो जो यूनिट सेल लैटिस पैरामीटर है TiO2 का, वो चेंज हो जाएगा। एक तरीका ये।
तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? एक्सरे डिफ्रैक्शन से। दूसरा तरीका यह है कि अगर आयरन मेटल क्लस्टर है तो आयरन का आयनिक स्टेट कितना होगा? 0। और अगर आयरन सब्स्टिट्यूशनल है तो इसका मतलब आयरन कैन ऑक्युपाई आइदर 2+ और 3+। व्हाट टेक्निक आई शुड यूज? XPS, right? So using these two combined techniques, one can get an idea that what kind of doping is there, what kind of ionic state is there, क्या आपके सिस्टम में मैग्नेटिक है या नहीं है, इन सारी चीजों को है हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? If you have any query related to all this discussion, I'll be happy to answer them. Please let me know. And with that, I will just yeah, please continue. As you have said that if we dope with iron, Yep. then its tendency is to go at the same place. All the irons have the tendency to go to the same place and form the cluster. But why? Why it will not uniformly distributed in the material? Okay, fantastic. I like this question. I'll just briefly tell you that मैंने ऐसी शंका ही क्यों व्यक्त की जो हम आयरन डोप करेंगे वो क्लस्टर बनाएगा। हम पहले से ये क्यों नहीं मान लेते हैं कि जो आयरन हम डोप कर रहे हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। Am I right, sir? Exactly. आपकी शंका काफी वाजिब है, मैं स्वीकार करता हूं, मुझे ऐसा नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं एक शंका इसलिए उत्पन्न कर रहा हूं क्योंकि इस तरह के मटेरियल में ऐसा देखा गया कि जो एलिमेंट डोप किए जाते हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कारण क्या है? एज आई सेड कि आयनिक रेडियाई उनका अलग है। तो आयनिक रेडियाई अलग होने के कारण जब वो डोपिंग होता है तो जो आपका ओरिजिनल यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में लैटिस पैरामीटर चेंज होते हैं। उस चेंज इन लैटिस पैरामीटर के कारण आपका जो मटेरियल है वो एक तरह का स्ट्रेन फील करता है। स्ट्रेन क्या है? The change in lattice parameter with respect to its original value. तो वो जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन जब आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो एक स्ट्रेन एनर्जी बढ़ता जाता है और उस स्ट्रेन एनर्जी को बढ़ने के कारण उसमें या तो डिसलोकेशंस होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा वो उस आयरन के सब्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। Fantastic. Okay. As I said, that let me put it this way. I'll put out 3 different perspectives. Iron that I am doping in, I'm really liking your questions because they are spot on questions. The iron that I am doping in the system, एक तो हमारा एक अपना परसेप्शन है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ठीक है? तो the ideal situation that we like, that we dream, that we desire is that आयरन जो हमने डोप किया है TiO2 में, किसी एक टाइटेनियम को उठा करके आयरन वहां जाकर के बैठ गया, किसी दूसरे यूनिट सेल में दूसरा आयरन जाकर के बैठ गया। बट व्हाट हैपेंस, देयर इज ए सोल्युबिलिटी लिमिट, ठीक है? अब जैसे पानी लें, पानी में मैं शुगर ऐड करता जाऊं, देयर इज ए लिमिट अप टू व्हिच वी कैन डिसॉल्व शुगर इन वाटर। Beyond that limit, what happens? That sugar doesn't dissolve. Okay, but आप उसको फर्दर डिसॉल्व करने के लिए क्या करोगे? उसको और हीट कर दोगे। तो जैसे ही आप वाटर को हीट करोगे, the solubility limit of sugar will increase. So at higher temperature, your solubility limit of sugar is much higher than at room temperature. लेकिन क्या जब आप इसको वापस रूम टेम्परेचर पे लाओगे तो क्या वो सॉल्यूशन स्टेबल है क्या? The answer is no. They are soluble but unstable. They are not stable. A slight perturbation will again crystallize the whole sugar. Exactly यही होता है आयरन के सब्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर पे। Depending on the dopant percentage, 1% आपने डोप किया तो जो होस्ट मैट्रिक्स है वो बोलता है ठीक है 1% तो सॉल्युबिलिटी लिमिट है, 2% ठीक है मान जाएंगे, 3, 4, 5 होते हैं, फिर TiO2 का अपना एक रिजेंटमेंट स्टार्ट होता है that you are now beyond the solubility limit. Exactly this is followed. ठीक है? Number 1, I will request all of you to see one very interesting set of experiment in your own house. फ्रीजर में आप एक बोतल बिस्लरी का बोतल पानी लो और फ्रीजर में डालो
ठीक है, फ्रीजर गोज टू सम -3-4 डिग्री सेंटीग्रेड और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप देखोगे जब आप फ्रीजर खोलते हो तो अभी भी वो पानी ही दिखता है, राइट, लेकिन जैसे ही आप उसको बाहर निकालो और थोड़ा सा जर्क दो, इट क्रिस्टलाइजेस इन ice. Why? Because water generally tends to form solid below zero, right? But since your water is pure, you have gradually cooled the system without giving it perturbation. So your water is now in super cooled state. But that super cooled state is still unstable. Just by giving a slight perturbation, again it goes to the stable state, and that stable state is nothing but the ice. That you can check. इसी तरह से इस तरह के जो मटेरियल है उसमें एक solubility limit है up to which your host matrix accepts that particular foreign element, and that is usually governed by the kind of ionic radii mismatch is present in your system. That is the I hope you got the understanding. Yeah, thank you for your queries. Yeah. मेरा एक क्वेश्चन है। Yes sir. मैं बॉटनी से हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर, मैं अपने मेरा एक क्वेश्चन है। Yes. लोटस जो है जी, लोटस कमल जिसको बोलते जी हैं, जी जी जी, उसका जो सीड है जी, एक्सकेवेशन साइट से कई जगह निकला है जी जी, एंड मोर देन 1000 ईयर ओल्ड सीड्स हैव कम आउट ओके ऑफ द एक्सकेवेशन साइट, ओके और उसको जर्मिनेट कराया गया है, जर्मिनेट हो जाता है। ओके तो इतना, इसीलिए उसको साइन ऑफ सिंबल ऑफ एटर्निटी भी कहा जाता है। ओके, ये जितना आपने इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी चर्चा की है, जी, क्या उससे उसकी मदद से हम इसको डिसिफर कर सकते हैं कि इतनी प्रोलॉन्ग डोरमेंसी इसमें क्यों है? यू आर ट्राइंग टू गेट कितना पुराना है या कितना क्यों? How the features have come out in this particular material, the biological material. Okay. I doubt, because for that we need to have a different set of materials, different range of materials, so that of different time domains. Only then we can get some feeling as to how the whole seed structure has evolved over the time. Yes, I'm getting your point, but I really doubt. Okay, frankly speaking, I do not have idea that what kind of experiment one has to really perform. क्योंकि अगर आपका प्रश्न ये है कि इसका फॉर्म इस तरह से क्यों डेवलप हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ थ्योरी भी ऐड करना पड़ेगा, सिमुलेशन करना पड़ेगा अपने को, कि क्यों ये पर्टिकुलर कोई भी जो फॉर्म होता है दैट इज गवर्न्ड बाय योर सरफेस एनर्जी, राइट? सो why a particular surface gives that kind of energetics, जिसके कारण वो एक, मैं actually because of lack of time I didn't show those results, but I had shown that a particular, beyond a particular size only a given shape will be stable, otherwise not. तो वो उस मटेरियल का जो जिस तरह से पता नहीं वो जो सीड्स है, उस सीड्स के बनने में कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, I mean it has to be a good collaboration between a botanist and physicist and simulators. 1200-1300 साल पुराना सीड, Quite possible, sir. बहुत सारे इस पर पेपर्स हैं। Yes, yes. And the seeds have been made to germinate. Okay. थोड़ा सा स्केरिफाई करके। मेरे ख्याल से मैं, if I look into those papers, then possibly I can give my comments. Sure, sir. I'll be more than happy. Yeah, sure. Fine. We can get an idea about the structure. We can get an idea about the elemental composition and all those things. But I mean, I really have to look into this. हाँ बंधुओं, आप लोग भी पूछें। सीड के इसका कैरेक्टराइजेशन नहीं, 12 साल से है तो इसका कैरेक्टराइजेशन उसके इंग्रेडिएंट्स का। अगर आप लोग नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगा फिर। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को इसी तरह से भी देखते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए हमारे कोलकाता सेंटर में कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वहाँ पर ये मैंने शुरू में जो डिटेल दिखाया था वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट। प्लीज। एडवांस मटेरियल्स हैं
इसको एडवांस क्यों कहते हैं? कोई मटेरियल एडवांस कब बनता है? Fantastic. Okay, Well, ठीक है। इसका साधारण सा उत्तर मैं ऐसा देना चाहता हूँ कि बहुत पहले जो अपने सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस थे, या अगर आप आज से 40 साल 50 साल पहले का कंप्यूटर देखें तो संभवतः इस क्लासरूम का आधा वाला जो भाग था इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था। उसके पीछे कारण ये था कि जो लॉजिक गेट्स हैं, अब ये लॉजिक गेट्स बेसिकली हैं क्या? सिंपली नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ डायोड्स एंड ट्रायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, राइट? ये जो डायोड्स, ट्रायोड्स या ट्रांजिस्टर्स हैं, दे आर नथिंग बट असेंबली ऑफ पी टाइप लेयर एंड एन टाइप लेयर टुगेदर, राइट? तो उसके कारण से लॉजिक डिवाइसेस बने एंड इट वाज सो रियली बल्कि। अगर आप जेम्स बॉन्ड मूवीज के फैन हो तो आपको ध्यान आएगा कि जो रोजर मोरे हुआ करते थे उनका कार भी कितना बल्कि हुआ करता था। बट नाउ इफ यू लुक टुडेज डेनियल क्रेग्स कैसिनो रॉयल और द लेटेस्ट वन नो टाइम टू डाई एटसेट्रा, their car is really silky and very full of different functionalities. When I say full of different functionalities means on a simple platform you are you are kind of on a single platform you are assembling different materials together for multitasking properties. एक सिंगल सा चिप आपके लिए सेंसर का काम कर रहा है, आपके लिए एक्चुएटर्स का काम कर रहा है, आपके लिए क्या कहते हैं डेटा एनालिसिस का काम कर रहा है. So that is why in that way the whole material synthesis and understanding has advanced. In that context the people have started turning them as advanced materials. लाइटर भी हो जाता है. Sorry sir. एडवांस मटेरियल लाइटर भी होता है. Exactly, लाइटर हो जाता है, जो डेंसिटी इंक्रीजेस एंड रिजिड हो जाता है. आप पहले हम लोग फ्लॉपी डिस्क इतना बड़ा लेकर के चलते थे और उसमें 2 MB का डेटा हुआ करता था. आज इतने से पेन ड्राइव में जो है हम लोग 10 GB का डेटा लेके चल रहे हैं. So these are nothing but the advancement in that particular direction. So in that context it is. सिंक्रोट्रॉन होता है. जी जी. अभी हम लोगों ने इतना समझा, इसमें अपने डिजायर्ड एनर्जी के जी जी इलेक्ट्रॉन बीम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. एक चीज दिमाग में चल रही थी, हो सकता है वो सिली क्वेश्चन हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहा है डिजायर्ड एनर्जी के लिए, उसका किस क्या रेंज का वेलोसिटी होता होगा उसका? सर आप इस प्रश्न को सिली करके मेरे this is a spot on question. Generally its velocity is like 2.4 into 10 to the power 8 meter per second. So it's 0.8 times the velocity of light. So it's really that. एक और yes sir कमेंट है. yes sir. उसपे just I want to know your opinion. Sure sir, I'll try my best. कि पहले कुछ साल पहले 20-30 साल पहले ऐसे ले लें तो जो टाइम है वो थोड़ा चेंज होने में ज़्यादा गैप होता था. मतलब 30 साल बाद जमाना चेंज होता था, 50 साल बाद. अभी पिछले 20 साल में क्या हो रहा है कि एवरीथिंग, वेदर एजुकेशन सेक्टर हो या कोई और चीज़ हो, तो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती है. टेक्नोलॉजी एक के बाद एक नई आती रहती है. तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो उतना सस्टेन नहीं कर रही. तो जो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव लें और उसको हम कंपेयर करें मटेरियल डेवलपमेंट, एडवांस मटेरियल डेवलपमेंट साइड से, तो क्या आपको लगता है कि जो एडवांस मटेरियल डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज सपोर्टिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसमें हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा? Okay, this is a very timely and quite relevant question, and I must put my own opinion. What I think about this is that of course there have been advancement in material synthesis and process, but the fact is that even today जो हमारे जो डिफेंस ऑफ चीफ जिनका भी देहांत हुआ, जो मिग था, that was still really quite old in the sense कि 2007 का वो ऑर्डर किया हुआ सिस्टम है, right? So we are still not using the so-called advanced techniques even today, right? In that way we are still lacking to use the modern state-of-art facilities and the devices.
रही बात कि हर समय हम चेंज हो रहे हैं, इसका सिंपलेस्ट उदाहरण है अपना मोबाइल। आजकल मुझे ध्यान है, पहले मैं छोटा सा मोबाइल लगता था, वो एक छोटा सा मोबाइल 5 साल 10 साल चलता था। अभी तो मेरी वाइफ जो है मेरे मोबाइल को हर 1 साल में चेंज कर देती है, राइट। सो एंड द कॉस्ट इज स्टिल 10 times लार्जर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। सो ये तो कहीं ना कहीं जो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, वो उस तरह से हो गई है कि हम आज अपने मन को बहुत ही भटकने होने देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक सही सेंस में अच्छा भी है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक हमारी ज़रूरतें नहीं ऐसी आती हैं तब तक हम उस डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू रियली मेक ए गुड कंप्रोमाइज बिटवीन व्हाट वी वांट एंड व्हाट इज गुड फॉर अस। साइंस तो चलता रहेगा, साइंस चलता रहेगा सर, एंड टेक्नोलॉजी भी चलती रहेगी। थैंक यू सर। थैंक यू। सेटअप कैसे रखेंगे कि 2 जगह से जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकलेंगे, सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन जो निकलेंगे, हाँ वो 2 जगह से कैसे निकल सकते हैं अगर हम लॉन्च करा रहे हैं? हाँ। ओके। सो आई गॉट योर पॉइंट, प्लीज थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। इनका प्रश्न ये है कि चूंकि हम बेंडिंग मैग्नेट यूज कर रहे हैं और मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि उस एक बेंडिंग मैग्नेट से हम 2 बीम ले लेते हैं, ठीक है। तो इनका प्रश्न ये है कि बेंडिंग मैग्नेट एक ही है तो 2 बीम आप कैसे ले रहे हैं? इज दैट योर क्वेश्चन? एक ही जगह से, हाँ, एक ही जगह से आप 2 बीम कैसे ले रहे हो? तो होता क्या है बंधु कि जो क्या कहते हैं, देयर इज ए मैग्नेट होल, और जिससे कि आपका सिंक्रोट्रॉन बीम जो निकल रहा है वो सभी डायरेक्शन में हो रहा है, राइट। सो वी आर जस्ट यूजिंग दैट एपर्चर टू डिफ्लेक्ट दैट बीम। जब एक बार आपका रेडिएशन निकल गया, नाउ दे आर फोटॉन्स, ठीक है, तो उस फोटोन को आपको सिर्फ टैप करना है। नाउ यू आर नो मोर कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, नाउ योर ऑप्टिक्स गवर्न्स दैट वो जो फोटोन निकल रहे हैं वो किस एंगल पे निकल रहे हैं। So for that what you do is use some kind of reflector just to deflect that photon beam to get a different beam line. So that is how people generally do. Yes. Yes. जब आप बता रहे थे कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहाँ एक होल जनरेट होता है, ठीक है। वो होल क्या है? वो होल क्या है? होल तो भाई साहब बहुत बड़ा होल है। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे। मान लीजिए पहले आपका n इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, आपने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब कितना बचा? n-1 इलेक्ट्रॉन। जो सिस्टम पहले आपके n इलेक्ट्रॉन के सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में था, अब वहां जब n-1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो वहां पर फिर एक पर्टर्बेशन हुआ उस एक इलेक्ट्रॉन का, राइट। दैट पर्टर्बेशन इज नथिंग बट दैट इज हाउ वी ट्रीट एज वन होल प्रेजेंस इन दिस सिस्टम। सो absence of an electron which affects the energetics of your system is the presence of one hole in the system, right? जी, पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली। सर, यस सर। जब हम एक्सआरटी लेते हैं जी, वहाँ पे प्लेन्स में 4 डायमेंशन का प्लेन आता है, कभी-कभी जनरली 3 डायमेंशन का प्लेन आता है। 3 ट्रांजिशन का प्लेन, 3 डायमेंशनल। ओके, हाँ हाँ, कहीं-कहीं 4 डायमेंशनल प्लेन भी आते हैं। ओके, हाँ, 4 डायमेंशनल का क्या मीनिंग? ओके, नहीं देखिए, ये तो अपना एक क्या कहते हैं, अपना चीजों को आसान करके समझने का जरिया है। होता क्या है कि जो आपके मटेरियल्स हैं मोस्टली जो क्यूबिक डायमेंशन में रहते हैं, ठीक है, तो उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको HKL से जो है आसानी से आप उन चीजों को रिप्रेजेंट कर देते हो, तो दे बिकम 3 डायमेंशनल। लेकिन जो हेक्सागोनल सिस्टम्स हैं, उन हेक्सागोनल सिस्टम्स को आप XYZ में आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, डू वी हैव ए ब्लैक बोर्ड हियर? I'm sorry. I'm all right. ठीक है, सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत पुअर है, इसलिए मैं बायो में नहीं गया। ओके, सो इसमें होता क्या है, जो एक्सिस होते हैं आपके, ये एक एक्सिस हुआ, ये एक एक्सिस हुआ, ये एक एक्सिस हुआ, और
ये एक एक्सिस, राइट? सो यू हैव A1, A2, A3 and C. ठीक है? So that is why to represent a hexagonal system you need 4 dimensions, A1, A2, A3 and C. जबकि क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, जस्ट x, y and z are sufficient. ठीक है? और कोई प्रश्न? यस। बैंड गैप को मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो सवाल। कोई भी क्रिस्टल, कोई भी सिंथेसिस किए हुए, कोई भी नैनो पार्टिकल्स का कंपोजिट बनाए, तो मिनिमम कितने मतलब कैरेक्टराइजेशन वाले इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई साहब। आप जो नैनो पार्टिकल बनाते हो उसके पीछे एक पर्पस होता है, ठीक है? पर्पस क्या है? पर्पस है या तो आप उस नैनो पार्टिकल का सेंसिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करना चाहते हो, तो जो उद्देश्य है बस उस उद्देश्य को पकड़ के रखो। इसलिए मत कोई कैरेक्टराइजेशन करो कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सब कर लेंगे, खिचड़ी पकेगा उससे। आपको अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का करना है तो सबसे पहले जो इंश्योर करना होता है किसी भी मटेरियल सिंथेसिस में, आप पहले स्ट्रक्चर इंप्रूव करो, प्रूव करो कि आपका सिस्टम सिंगल फेज है, नंबर 1। नंबर 2 में उसका यूवी विजिबल क्या है, अगर आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। पार्टिकल साइज उसका प्रूव करो, राइट? पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको प्रूव करो, और मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करो, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी के हिसाब से करो तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी करो, नहीं तो so your number of techniques should not be the criteria. The criteria should be what do you want to prove, right? तो अपने आप से पूछो कि ठीक है, अगर मैं किसी को बताने जा रहा हूं कि इस नैनो पार्टिकल के कारण हमारा ये जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इंप्रूव हुआ है या बैंड गैप इंप्रूव हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? अगर आपके स्थान पे रहूंगा तो मैं कम से कम 3 साइज का नैनो पार्टिकल बनाऊंगा, और उन तीनों साइज के नैनो पार्टिकल को मैं पहले प्रूव करूंगा कि ये मटेरियल वही है, मटेरियल के चरित्र में नहीं परिवर्तन है, ठीक है? फिर उसके बाद मैं प्रूव करूंगा कि उनके पार्टिकल साइज जो है वो अलग अलग है, उनके कारण उनके बैंड गैप में ये प्रॉपर्टीज चेंजेस हुए हैं, ठीक है? उसके पीछे कारण क्या है, तो सरफेस, आपका सरफेस कंट्रीब्यूशन कितना है, कैसा है, तो इस हिसाब से मैं अपने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को डिसाइड करूंगा, राइट? यस प्लीज। सर, मैंने कोई नैनो कंपोजिट बनाया जी, और मुझे उसके लिए फोटो कैटालाइटिक स्टडी करनी है जी, चाहे पॉलिटेंट्स के लिए, जी जी जी, तो उसके लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है? किस तरह को घुमा फिरा करके आप वापस उसी सवाल पे आ गए हो, ठीक है? फोटो कैटालाइटिक स्टडी करनी है। फोटो कैटालिटिक, फोटो कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ कि आप फोटोन डालोगे और फोटोन डालने के बाद उसके कौन से प्रॉपर्टीज में चेंजेस आप प्रूव करना चाह रहे हो? सर, उसके कैटालाइटिक एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं। लाइक कौन सा कैटालिटिक? कैटालाइटिक एफिशिएंसी को। फोटो कैटालिटिक एप्लीकेशन में आप बेसिकली करते क्या हो, ये बताओ मुझे। मेरा जो कंपाउंड है, हाँ, वो पेरोवस्काइट है, हाँ, ठीक है, उसके अंदर हम कंपोजिट बनाना चाहते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक पेरोवस्काइट है क्या? नहीं, इनऑर्गेनिक पेरोवस्काइट है, ठीक है, हाँ। तो उसके बाद हम उसका फोटो कैटालाइटिक स्टडी करना चाहते हैं। देखो, फोटो कैटालिटिक स्टडी जब बोलते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बताओ कि लाइट के प्रेजेंस में हाँ, क्या एक्टिविटी दिखा रहा है पॉल्यूटेंट्स के साथ, वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स के साथ, ठीक है? तो पॉल्यूटेंट्स के साथ होता क्या है, दे आर नथिंग बट सम काइंड ऑफ सेंसिंग प्रॉपर्टीज, राइट? तो किसी भी मटेरियल की सेंसिंग प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो जाती है किसी एक्सटर्नल पर्टर्बेशन के प्रेजेंस में? तो होता क्या है कि वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो आपके सरफेस के साथ अटैच होने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो सरफेस के साथ अटैच होते हैं तो या तो उसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी चेंज होगी, या तो उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, या तो उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी चेंज होगा, राइट? दिस इज व्हाट यू ट्राई टू डू। तो इस केस में मेरा ऐसा मानना है, मैं चूंकि फोटो कैटालिटिक में काम नहीं करता हूं, सो आई कैन नॉट गिव मच आइडिया, बट व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल डू सम काइंड ऑफ फोटोल्यूमिनेसेंस मेजरमेंट, जिसमें कि हमको ये आइडिया लगेगा कि वो जो पॉल्यूटेंट के प्रेजेंस में कौन सा बॉन्डिंग हुआ है उसके सरफेस पे, ठीक है? सो दैट फोटोल्यूमिनेसेंस विल गिव यू ए कैरेक्टरिस्टिक एक्साइटेशन
राइट, अगेन दैट इज नथिंग बट ऑल इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन ओनली। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 में उसका मान लो अगर हम रेजिस्टिविटी मेजरमेंट प्रूव कर सके, सो आई विल हैव ए रेजिस्टिविटी सेटअप जहां पर हम करंट सोर्स देंगे और 2 वोल्ट मीटर लेंगे, और एक तो बिना पॉल्यूटेंट के प्रेजेंस में उसका रेजिस्टिविटी देखेंगे और दूसरा पॉल्यूटेंट्स के प्रेजेंस में उसका रेजिस्टिविटी देखेंगे। सो इफ रेजिस्टिविटी चेंजेस देन आई कैन यूज दैट एज एन इंफॉर्मेशन कि ठीक है इस पॉल्यूटेंट्स के कारण इसकी रेजिस्टिविटी चेंज हुआ। देन वी कैन आल्सो शाइन द लाइट ऑन दैट पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी सेटअप एंड देन सी अगेन ए चेंज इन रेजिस्टिविटी। देन व्हाट आई कैन आल्सो डू, आई कैन डू सम टाइम डिपेंडेंट स्टडीज कि टाइम के साथ वो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी कैन do and that come to my mind. Thank you. No problem, sir. Yes, ma'am, please. Sorry, ma'am. जोर से बोलो, जोर से बोलो। Okay, synchrotron की applications. Fantastic. Okay. So, friends, as I said that synchrotron से हमको मिलता क्या है? Synchrotron से हमको electron beams मिल रहा है. Sorry, electromagnetic radiations मिल रहा है. ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि इंटेंस बीम है, हाई इंटेंस है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो एनर्जी रेंज है वो बहुत ज्यादा है, ट्यूनेबल एनर्जी रेंज है। तो इतने सारी चीजों के कारण आप इस एक सिंक्रोट्रॉन बीम से अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी लोग कर सकते हैं, लोग एक्सरे डिफ्रैक्शन कर सकते हैं, लोग एक्सरे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं, लोग एक्सरे फ्लोरोसेंस कर सकते हैं, wide range of experiments that one can do. Remember, synchrotron radiation is just a kind of torch जो आपको रास्ता दिखाता है कि हाँ ये जो है यहाँ पर इस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है। वो जो प्रॉपर्टी है वो आप अलग अलग पर्पस से उसको प्रूव करते हो। कुछ लोग स्ट्रक्चर के लिए करते हैं, कुछ लोग ऑप्टिकल के लिए करते हैं, कुछ लोग मैग्नेटिक के लिए करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के लिए करते हैं। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को आप सिंक्रोट्रॉन बीम के द्वारा प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एडवांटेज यही है कि ट्यूनेबिलिटी है इंसिडेंट फोटोन एनर्जी का और वो हाई इंटेंस बीम है, राइट। सो दीज आर द एप्लीकेशंस दैट पीपल जनरली यूज। यस मैम। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और ओल्डर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब आपने बताया जी, तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस होता है। जी जी जी। तो सर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा एटम में से और ओल्डर इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या उसके एटम में भी उसके स्ट्रक्चर में भी कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा? ओके, आपका प्रश्न ये है कि जो प्लीज कंटिन्यू। सर तो उसका जो एटम के अंदर का जो लेवल है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में अलग अलग एनर्जी है, तो वो जब इसके अंदर आएगा एटम के अंदर तो वो किस लेवल पे आएगा, किस बेसिस पर देखेंगे और किस तरह से डिफरेंस आएगा उसके स्ट्रक्चर में? सर इसी क्वेश्चन से मेरा रिलेटेड हाँ, हाँ, हाँ। कि वो जब अंदर वाला कोर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो होल बनेगा, तो बाहर का अंदर क्यों होगा? आपने तो कहा था कि जो एनर्जी मिलेगा कोर का कुछ ज्यादा होता है, आउटर को भी तो मिल जाएगा लेवल में एनर्जी है, तो उसको बाहर जाना चाहिए, नीचे क्यों? सही पकड़े। ठीक है, चलो ये हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी कुछ कुछ बोल देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो निकल गया उनको तो राम राम बोल दिया हमने, ये फोटो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ पर ये खाली हो गया, राइट। अब साहब जैसे ही ये खाली होता है बोरबरी की आत्मा आ जाती है। पहले ऑर्बिट में तुम्हारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट स्टेबल। ठीक है, तो होगा क्या कि जो हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत अपना एनर्जी लोअर कर, कोई भी प्रोसेस जो होता है उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में एनर्जी उसका कम हो। मैं इस चौक को ड्रॉप करता हूं, वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तुरंत वो हायर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ का या तो यहाँ का, दोनों से आते हैं एक्चुअली,
तो मान लो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गया, अब ये बेचारा खाली हो गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इस प्रोसेस में या तो वो रेडिएशन निकालेगा, अगर रेडिएशन नहीं निकालेगा तो उसी रेडिएशन को यूज करके इस इलेक्ट्रॉन को वो इजेक्ट कर देगा, दैट बिकम्स योर ओजे इलेक्ट्रॉन। अब फिर यहाँ जो होल क्रिएट हुआ इसको फिल करने के लिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। सो यू विल हैव ए मल्टीपल चैनल ऑफ ओजे इलेक्ट्रॉन एमिशन एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन। रही बात आपके प्रश्न की, तो क्या उस प्रोसेस में वो बेचारे एटम के साथ तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसका क्या होगा? तो होता क्या है कि ये सब जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ग्राउंड से कनेक्ट होने के कारण जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है, ठीक है। बट द टाइम स्केल ऑफ दिस होल प्रोसेस इज फ्यू पिकोसेकंड्स, दे टेक प्लेस इन सच ए क्विक टाइम ना, पता नहीं चलता, राइट। यस सर। देश में किसी वस्तु को ले जाया जाएगा। हाँ सर, आपको ले चलेंगे। ठीक है, मैं जा सकता हूँ, तो उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि उसका और प्रॉपर्टी भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज होगा तो किस वजह से चेंज होगा? राम जाने। Please take your seat. Please take your seat. Okay, see that depends. होता क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाते हो तो स्पेस में ऐसा क्या है जो यहाँ से डिफरेंट है? द नंबर 1 इज द प्रेशर, ठीक है। यहाँ जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो स्पेस में वो प्रेशर नहीं रहता है, तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो 760 मिली टॉर्क के डिपेंडेंट हो वो सारे प्रॉपर्टीज जो हैं चेंज हो जाएंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि चेंज होगा, राइट। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि चूंकि जब आप ले जा रहे हो तो रेडिएशन भी वो फील कर रहा होगा, तो उस रेडिएशन के कारण मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो। I really don't have idea about this, that what would be the changes। ये सब जो है उसको देखना पड़ेगा सचमुच उस इंटेंस रेडिएशन सिचुएशन को क्रिएट करके कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। बट जनरली जब वो ले जाते हैं स्पेस में तो सिंस दे आर इन वेरी वेल प्रूफ पैक्ड रॉकेट लॉन्चर, तो मुझे नहीं लगता है कि उस रेडिएशन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो। यस सर। सर, जो हमारे जितने भी डिवाइसेस हैं वो CO2 इमिट करते हैं, तो रेडिएशन उससे होता है, क्या उस रेडिएशन को कम किया जा सकता है? ऐसा क्या रेडिएशन CO2 रेडिएशन को कम किया जा सकता है? हमारे डिवाइसेस जितने हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो CO2 बहुत जगह देखने को मिला है इमिट करता है। ब्लैक होल में ये सब जो हम लोग देख रहे हैं अलग चीज़, ये सब मटेरियल्स डिज़ाइन की बात है कि आप ऐसा कुछ डिज़ाइन करें जिसमें CO2 जो है बाई प्रोडक्ट ना हो। आई रियली डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू राम जाने चौधरी सर, आपका लेक्चर वाकई ही इतना अच्छा रहा। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी एंजॉय किया और काफ़ी समझा भी, ये इंटरेक्शन से पता चल रहा है और मेरे लिए भी काफ़ी चीज़ें सीखने को रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कड़ी में आगे अंतिम कड़ी में मैं डायरेक्टर IQAC प्रोफेसर NK अग्रवाल सर को आमंत्रित करना चाहता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आप लोगों को इतने अच्छे लेक्चर सुनने के बाद क्या धन्यवाद सुनने का मन कर रहा है? क्या ऐसा मन नहीं कर रहा है कि आधे एक घंटे और इनका लेक्चर सुने? मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि एक प्रक्रिया है, इसका पालन करना है। तो इस प्रक्रिया में मैं सबसे पहले आप लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं वो सब इस इलाके के मेधावी छात्र छात्राएं रिसर्चर हैं। ये सभी में मैं एक दूसरा राम जने चौधरी देख रहा हूँ जो आपके सामने बैठे हुए हैं। ये इसी मिट्टी से पले बढ़े और यहीं के रहने वाले जब वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आपको आज इन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर चलकर आप भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
ऐसे महान विभूति मिथिला के जनक डॉक्टर राम जनेश चौधरी जी के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अब मैं इस कार्यक्रम को अनुमति देने वाले माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह सर, जिनसे कल हम लोग मिले थे, प्रति कुलपति महोदया भी थी, उन्होंने अपनी कल ही शुभकामनाएं दे दी थी और इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी थी। कुलपति महोदय हमेशा एकेडमिक कार्य के प्रति सजग और सचेष्ट रहते हैं। मैं उनके प्रति भी अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज जो इस कार्यक्रम हुआ है, इसकी प्रणेता आज के इस कार्यक्रम की चेयरमैन प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा जी हैं, जिनकी सोच का नतीजा है कि आज ये कार्यक्रम हुआ है और देख रहे हैं कि एक लेक्चर सीरीज चलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी तरह का कार्यक्रम लगातार ऐसे महान विभूति हम लोग को मिलते रहेंगे और हम लोग ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके आप लोग के दिमाग में वाइब्रेटिंग पैदा करेंगे और आप लोग भी इस जगह पर, इस उच्च कोटि के स्तर के इंस्टीट्यूशंस में पहुंचेंगे, ऐसी कामना है। अतः मैं प्रति कुलपति महोदया के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मंच पर हमारे सामने हम लोग के फैकल्टी ऑफ साइंस के विद्वान डीन बैठे हुए हैं। वो पहले ही अपनी एक्सरसाइज करके आए थे। उन्होंने जितनी बातें आप लोग को बताई वो बहुत ही सारगर्भित थी और लगातार डीन साहब बैठ के बात सुनते रहे, हम लोग का उत्साहवर्धन भी करते रहे। ऐसे महान विद्वान डीन के प्रति मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कुल सचिव महोदय अभी हम यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, वो चले गए हैं। अपने व्यस्तम समय में उन्होंने अपना समय निकालकर आप लोग के बीच आकर अपना अनुभव, अपना संस्मरण से आप लोग का उत्साहवर्धन किया और आगे ऐसे कार्यक्रम चलते रहने के प्रति शुभकामनाएं दी। उन कुल सचिव के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस कार्यक्रम के लिए जगह देने वाले, आगे बढ़ने वाले डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के विभागाध्यक्ष के झा, प्रोफेसर के झा कितने सचेष्ट हैं। कल से वो लगे हुए थे इस कार्यक्रम को कराने के, कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे करना है। और अभिषेक जी और श्रीमान जी दोनों बैठे हुए हैं। ये आप लोग के ऐसे नूर हैं जो इस डिपार्टमेंट को जल्द ही लगता है कि राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का काम करेंगे। इन दोनों के प्रति आपके विभाग, केमिस्ट्री विभाग के सभी सदस्य, सभी कर्मी, सभी शिक्षक के साथ साथ विभागाध्यक्ष को इस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे सामने बैठे हुए हैं एचओडी बॉटनी प्रोफेसर विद्यानाथ झा जी, प्रेम मोहन जी, विकास पदाधिकारी डॉक्टर के साहू। इनके शोध के प्रति लगाव दर्शाती है कि ये लगातार कार्यक्रम में आके बैठे, देखे, सुने, समझे। ऐसे महानुभाव के प्रति भी मैं अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कुछ शोध छात्र लगातार मैं देख रहा हूं कि लगातार लिख रहे थे, नोट कर रहे थे। मधु वर्मा और सामने कुछ लोग बैठे हुए, उन लोग का नाम मैं नहीं जानता हूं। और सबसे आप लोग सामने में जितने छात्र छात्राएं, शोधार्थी, विद्यार्थी बैठे हुए हैं, आप लोगों ने जितनी तन्मयता से इनकी बातों को सुना, समझा, अपने क्वेश्चंस किए, उसे पता चलता है कि आप लोग
पहले से तैयार थे सुनने के लिए और अच्छे से समझने के लिए। हम लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विशेष ज्ञान पाना चाहते हैं और विशेष ज्ञान देने के लिए हमारे महानुभाव आए। आप लोगों ने तन्मयता से सारी बातें सुनी। अतः इस हॉल में उपस्थित सभी शोधार्थी विद्यार्थी के प्रति मैं अपनी शुभकामना देता हूं और सबों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस हॉल के सभी लोगों के प्रति कर दिया था, फिर भी आप लोग तो इनसे भली भांति परिचित हैं, इनसे परिचय की कोई आवश्यकता आप लोग को नहीं, किसी को नहीं है। क्योंकि जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में कहने की जरूरत नहीं पड़ती है हमको। मुझे कभी भी इनको बोलना नहीं पड़ता, ये खुद फोन करके बोलते हैं सर कल कार्यक्रम है वहाँ जाना है। तो ये खुद प्रयासरत रहते हैं और अपना पूरा साजो सामान के साथ अपने साथ लेके आते हैं। ऐसे गणेश जी के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है।